Thank you, sir. So I request Ginny Jacob, Assistant Professor, Faculty of Management, Rabindranath Tagore University, to start the webinar. So Ginny, it's over to you. Thank you. Thank you. Low Holtz once said, "It's not the load that breaks you down, it's the way you carry it." Good afternoon to all present here. I, on behalf of Rabindranath Tagore University, Bhopal, would like to welcome you all to the one-day national webinar on innovative approaches for managing everyday stress, organized by the Faculty of Management and Commerce, Rabindranath Tagore University, Bhopal, in collaboration with the Department of Management, the Bhopal School of Social Sciences, Anand Vihar College for Women, Bhopal, and Vardhaman College, Bijnor, UP. Life has become more demanding, complicated, and mechanical, and ever-increasing needs and aspirations, high competition, pressures of meeting deadlines, uncertainty of future, and weak social support system have made the life of people stressful in modern society. This webinar is designed with the objective of introducing and promoting Indian education methodology that integrate mind, body, and spirit, and to guide towards a stress-free environment in our society. I invite Dr. Sangeeta Johri, who is HOD, Faculty of Management, and IQAC Coordinator, Rabindranath Tagore University, for giving the formal welcome. Thank you, Ginny. So at the outset, I welcome our chief guest of today's national webinar, a renowned personality indeed across globe now, I can say, Rajiv sir. Virtually, yes, we can applaud for sir because ये बहुत जरूरी है. सर हमेशा कहते हैं कि तालियों की गड़गड़ाहट से जो है वो जोश बढ़ता है. हम बहुत कुछ सर से सीखते हैं और अभी भी सीखने की जो पूरी इच्छा है वो बरकरार है सर. आज भी कुछ नया सीख के जाएंगे. अरे हम आती तालियों के लिए है बड़ी नहीं, आज सुबह ही सर आपके लिए तो डेफिनेटली जब मैंने ये कहा था कि आज एक स्ट्रेस के ऊपर वेबिनार है और मेरी एक कलीग है, मैंने उनसे कहा कि आज का वेबिनार है, अटेंड करिएगा और सर रहेंगे तो एक कॉम्प्लीमेंट है सर कि उन्होंने कहा कि सर की तो आवाज सुन के ही स्ट्रेस खत्म हो जाता है. सो दैट्स व्हाई आई केप्ट यू इन बिगिनिंग ऑफ द सेशन, क्योंकि इवन आई know that your voice is really having a lot of positive vibrancy which gives life to people. So welcome you, sir, in this national webinar. Sir is the President, Association of All Industries, Mandideep, and in one line I can say that he is a life survivor of lot many lives. So not more than this. I also welcome Dr. Lyra Simon ma'am. We have a collaboration with VSS Bhopal, and I welcome Dr. ma'am. Lyra ma'am, kindly, yes, you are here. And with Lyra ma'am बहुत सारे लोगों की टीचर हैं इस समय. Fortunately, त्रिशा ने भी बोला कि मैम ने उन्हें पढ़ाया है और उनकी एक स्टूडेंट मेरे साथ भी बैठी है और मैडम हमारे साथ जरूर स्कॉलर रही हैं, तो ये बहुत अच्छा नाता है टीचर्स और स्टूडेंट्स का यहाँ पे. लैला मैम, वेलकम to you in this national webinar and thanks for your kind collaboration and support. And I also welcome Alpa ma'am. I think she's also in panel. Yeah, she's there. So I also welcome Alpa ma'am, HOD Management, VSS Bhopal. I also welcome Dr. Sandhya ma'am, HOD Department of Commerce and Management, Anand Vihar College for Women. Sandhya ma'am is with us. Thank you ma'am for your kind support and for your presence in this inaugural session. And I also welcome our two eminent speakers with us. Yes, we have indeed a good collaboration with Dr. Ravindra Pathak sir, a perfect blend of, you can say, he's a teacher, he's a philosopher, and now he has intervened into astrology, which is a very, you can say, in these days, because we always want to know about our future and curious about the future, but he mythologically he relates the astrology and he's working on some astro business model and he's pursuing his postdoc. So sir, great to have you here with us. Thank you, sir. And I also welcome the young and dynamic person who believes in changing the lives of human beings with the therapy models also, and with you can say the art of living way also. So I also welcome Trisha Kaushik in our family. First time we will be having the session from Trisha.
So definitely all the participants will definitely will get some insights. With this, I also welcome Dr. Rajiv Agrawal sir again from Vardhaman College, Bijnor. So सर, जो मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो ये वेबिनार है इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है, यहाँ उत्तर प्रदेश भी हमारे साथ जुड़ चुका है। बिजनौर से अग्रवाल सर, नमस्ते। डॉक्टर राजीव अग्रवाल सर, आप तक मेरी आवाज शायद पहुंच रही है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ, and thank you for joining us in this national webinar out of the way from UP. And this is what is the power of virtual. We always say कि virtual platform पे हम इतनी दूर दूर से भी एक साथ हैं और साथ में मिलकर कुछ अच्छा करने की बात कर रहे हैं। With this, yes, I welcome all the faculties, deans, HODs of all the respective colleges and universities who have joined us with this in this webinar across India. And I assure you that yes, at the end of the session, because we have kept one question in our feedback link, please do fill that link. Yes, for the certification also, which is very much required in academics. Definitely, the one question we have put in deliberately for this particular session, that after listening this session of 1.5 hours or so, definitely you get an idea to manage your everyday stress. The theme of this particular webinar is, we know a lot of things about stress. I have speakers with me, so I'll not get into the subject matter. But जब हम stress की बात करते हैं, तनाव की बात करते हैं, तो सुन तो बहुत कुछ लेते हैं, follow कितना कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज इस वेबिनार के माध्यम से अगर आप अपना एवरीडे स्ट्रेस, जो कि जिन्हीं ने बताया वो किन्हीं कारणों से आ जाता है और जो आपको तंग करता है, स्ट्रेस भी बहुत सारे तरीकों का होता है, से ज्यादा अच्छा कौन बताएगा ऐसे, लेकिन जो आपको परेशान करता है, जो आपको सोने नहीं देता या जो आपको कुछ और सोचने नहीं देता, जो आपकी इनोवेटिव कैपेबिलिटीज को रोकता है, आज इस वेबिनार के अंत में शायद आप एक ऐसी टिप ले जाएं जो आपको उससे बाहर निकाल दे और आप एक फ्री बर्ड की तरह सोचें। इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर ये वन डे नेशनल वेबिनार लाइन अप किया है और मुझे आशा है कि आप सब जो भी मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इंडस्ट्री के भी कुछ लोग हैं और नए बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी हैं। सो डेफिनेटली हमारे साथ जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं उन बच्चों को एक राहत देंगे, टीचर्स को भी राहत देंगे। अननोइंगली काफी स्ट्रेस आ गया है उनके पास भी ऑनलाइन मैकेनिज्म से और पेंडेमिक से। So I'm sure this 1.5 hour of this today webinar is going to be the most productive hour of your day. So with this, I would like to put a pause on my welcome speech, and I request Ginny to please carry the further session. Ginny, it's over. Thank you, Sangeeta ma'am. After that beautiful welcome, let's move on. I now welcome Dr. Laila Simon, who is Associate Professor at Department of Management of the Bhopal School of Social Sciences, to speak a few words about the webinar. Thank you so much, Ginny. It's always a privilege to be a part and associated with the Rabindranath Tagore University, being an alumni of that. That's one reason. So I have my personal terms and also an institutional academic partner for every event that RNTU hosts. Apart from this, this is really, a goosebump for me, for whenever you find your own students coming onto the platform. What can be more better return gift that a teacher can get, like when you have your students coming on as speakers, like Ginny is my student, and I was so enthused to hear that Trisha, who's one of the eminent speaker today, is also a student of mine. So really, stress is something, we all have gone through at one point of time. And this pandemic has really put us into stress. And how to go about it, I would like to hear more by the speakers. And I remember one takeaway should be like, whatever happens in our life, we should always take it as it has happened for a positive cause. That's only one way how can we always overcome, stress. Now, I also take this opportunity to thank my HOD, Ms. Alpa Ghosh, for letting me and permitting me for such an event to happen.
because that's something very important. That, and I also appreciate my students who are there at a large scale today as participants. So I'm sure they're going to benefit a lot. And once again, thank you so much, Sangeeta ma'am, for taking up such a beautiful subject, which is actually the need of the hour. Thank you so much, Ginny, once again, and welcome to all the participants once again. Thank you. In life, everything happens for good. Thank you, Laila ma'am, for your words. Let's move further to the inaugural session. It gives me immense joy to introduce our chief guest for the day. He is an industrialist by profession, running his own 3 industries successfully at Mandideep, and is a trainer by passion, taken over 5,000 sessions and 400 corporate workshops, and has touched lives of over 2 lakh people in a time span of 20 years, teaching the art and craft of living a fulfilling life. A business coach and a leading expert in psychology of human behavior. He is president of Association of All Industries, Mandideep, an executive council member of Bhopal Management Association, a member of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, member of Federation of Indian Industry in the Policy Advocacy Committee. He is BTech in Mechanical Engineering from NIT Kurukshetra. He has done MBA and is also a gold medalist in MA Clinical Psychology. Without much ado, let me invite with deep respect Mr. Rajiv Agrawal to enlighten us with his wisdom. Over to you. Thank you, Miss Ginny. Thank you very much. बाकी सब लोग जो सुन रहे हैं वो बिल्कुल इम्प्रेस ना हो, ये सब मैंने ही लिख के दिया था और उन्होंने वो पढ़ दिया है, तो बड़ी बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। मैंने जानबूझकर बढ़ा चढ़ा कर लिखा था। डॉक्टर संगीता ने और जिनी ने मुझे कहा कि कुछ इनोवेटिव बात करना, वो जो पीटी पीटी बातें आप बार बार करते हैं तो वो मत कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आई विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट something meaningful to you in next 15 minutes. Please stay with me. I assure you that these 15 minutes I will leave you some actionable point which can really help you to beat the stress and the problems that you are facing. So thank you very much for inviting me. तो आइए मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, एक छोटा सा आइडिया उसके बारे में बात करते हैं। हमारी लाइफ जो है क्वालिटी लाइफ, Hello. I am back. I hope these technical glitches should not bother you more anymore, but then this is it. We have to learn to live with it without taking any stress. So, all right. Ginny, I'm audible now? Yes, sir. Okay, great. So if I am back, so let me go ahead. So the life that I was talking कि हमारी लाइफ जो कि क्वालिटी लाइफ की तरफ जानी चाहिए थी, वो सडनली बहुत सारी टेंशंस की तरफ जा रही है, स्ट्रेस की तरफ जा रही है। सक्सेस Sir, some technical glitches there. Yeah, some technical glitches there, sir. हाँ, वो चल चुके हैं, वो आ रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को समझा रहे हैं। तो अब क्या बात है, sir. So don't worry, I am back very much here. तो मैं ये कह रहा था कि जिंदगी में क्या हो गया, हम सक्सेस के पीछे भागते भागते ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस से कहीं दूर हो गए हैं और बार बार हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ते जा रहे हैं। एंड आई हैव टू से इट, एंड इट इज हैपनिंग टू ऑल ऑफ अस। हम डेलिबरेटली नहीं कर रहे हैं, बट इट इज हैपनिंग टू अस। डू यू नो कि 150 देशों का हैप्पीनेस इंडेक्स में जब ये देखने के लिए किस देश में लोग कितने हैप्पी हैं, हम 134th पोजीशन पर है। सो लोग, हम इतने कम खुश क्यों हैं, हम इतने स्ट्रेस में क्यों हैं, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, हम क्यों इतने तनाव में हैं, हम कौन सी चीजों से घिरे हुए हैं और हम क्या कर सकते हैं इस डिस्ट्रेस वरी से पार पाने के लिए। तो मैं आज जो आपको बताने वाला हूं, हम कोशिश करेंगे कि वो आपके ये जो टेंशन क्रिएटर्स हैं इनको आप एलिमिनेट कर पाए और आपकी लाइफ में कुछ बेटर पीस और बेटरनेस हो जाए।
उसके लिए मैं कोई क्रांतिकारी बात नहीं कहने वाला हूँ, लेकिन कुछ अलग बात कहने वाला हूँ, क्योंकि वो टाइटल में है कि इनोवेटिव वेज टू बीट स्ट्रेस। तो आइए उसकी बात करते हैं और आइए आपको कुछ बताते हैं। जरूरी है, all the diseases, it has proven that all the diseases, cardiovascular, heart, stress, even arthritis, they all are created by stress, and all you are going through a lot of stress at all point of time. So thank you very much. I'm Rajiv Agrawal and I welcome, and I'm honored to see the presence of some big names like Dr. Laila Simon, Dr. Alpha Ghosh, Dr. Sandhya Gupta, Dr. Rajiv Agrawal from Wizard. Welcome, sir. And Dr. Neha and Dr. Vinder Pathak, of course. So I'm very keen to hear to Trisha, of course. So here we go. देखिए साहब, क्या है, बड़ा सिंपल सा बात बताता हूँ आपको। पहले हम लोग बॉडी पर प्रेशर लेते थे, दिमाग पर कम प्रेशर लेते थे। इफ यू रिमेम्बर, पहले फिजिकल लेबर बहुत हुआ करती थी। आज से 25-30 साल पहले दिमाग की लेबर कम होती थी, खूब शरीर थकाते थे और खूब काम करते थे। तो हुआ ये कि हमारी बॉडी को प्रेशर लेने की आदत हो गई। अब वक्त के साथ साथ ये हो गया कि हम फिजिकल लेबर शायद उतनी नहीं करते हैं, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन उसके बाद स्ट्रेस बहुत लेते हैं, दिमाग के ऊपर प्रेशर लेते हैं, लेकिन दिमाग को, माइंड को स्टॉप लॉस लगाना नहीं आया है। हमारी बॉडी को स्टॉप लॉस लगाना आ गया है। ये स्टॉप लॉस क्या है? आप सबने अगर कमोडिटी या शेयर में कभी डील किया हो तो एक सेकंड में आपको, 2-4 सेकंड में समझा देता हूँ बात को। मैंने कभी डील नहीं किया, बट इतना स्टॉप लॉस समझता हूँ। स्टॉप लॉस में क्या कि मान लीजिए आपने कोई चीज 40 रुपए में खरीदी और आपने उसमें एक स्टॉप लॉस लगा देता है कि भैया 35 रुपए पर जब ये पहुंचे, इससे ज्यादा लॉस मैं नहीं सहूंगा, आप इसको छोड़ देना, इसको निकाल देना। अब कई लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार 35 पर क्यों निकाला, इससे तू जाने देती, इस तरह के बाउंस बैक करेगी, ये हो सकता है 45 हो जाए 50, ये जुआ मेंटेलिटी है। लेकिन आप कहते हो नहीं साहब भैया मुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं है, इससे ज्यादा नीचे जाए या ऊपर जाए, इतने लॉस पर मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। दुनिया में जितने बिलियनियर हैं, मिलियनियर हैं, उनकी हर डील में गारंटेड स्टॉप लॉस होता है। होता ये माइंड बड़ा बदमाश होता है। माइंड ना वो देखना बंद कर देता है जो एक्चुअल है। वो 30 पे जाता है तो वो अपने आप को समझाने लगता है यार 35 पे आ गया, ये 30 पे जाएगा, ये जाएगा 45 पे, ये 50 पर जाएगा, और वो दिखाने लगता है जो होता नहीं है। माइंड को स्टॉप लॉस लगाना आता नहीं है, बॉडी को स्टॉप लॉस लगाना आता है। तो फिजिकली क्या करते हैं, जितने डीलर हैं वो सारे फिजिकल आइटम पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं, एंड दैट इज व्हाट वेयर लाइज द होल आंसर। हमारे माइंड को दिक्कत है, उसको स्टॉप लॉस का आइडिया है नहीं। अच्छा क्या होता है, देखिए जब भी आप किसी स्ट्रेस में या वरी में होते हैं तो एक वरी का लूप क्रिएट हो जाता है, बार बार वही चीज सोचते जाते हैं, वही चीज जाते हैं और डीप उतरते चलते हैं, और माइंड वही घुसा रहता है, उसको स्टॉप लॉस लगाना आता ही नहीं। बार बार वही चीज सोचते रहेंगे और गहरे उतरते चले जाएंगे, भंवर में फंस जाएंगे, गेट सक्ड इनटू इट। लेकिन हमारी बॉडी ये नहीं करेगी, हमारी बॉडी स्टॉप लॉस लगाना जानती है। आप सब जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबके साथ कभी कभी हुआ होगा, कभी कभी आप दिन में काम करते करते कहते हैं यार अब थोड़ा रुकते हैं, थोड़ी देर रुक के करें यार, 10 मिनट रेस्ट ले, अभी बाद में करते हैं, या शाम को कभी यार अभी थोड़ी अब बाद में करूंगी ये काम, यार ये नहीं हो रहा है। योर बॉडी नोज to put a stop loss, your mind doesn't know stop loss। आपकी बॉडी को खूब अच्छी तरह पता है कि स्टॉप लॉस क्या है। वो देखिए ना, 1 मिनट का स्ट्रेस आपकी जिंदगी के 15 मिनट खा जाता है। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना सीखना पड़ेगा। शरीर को खूब अच्छी तरह से आता है। शाम को कभी आप थक जाते हैं, यार अब नहीं है काम और आप कल करेंगे, या दिन में भी ऑफिस में काम करते हो, यूनिवर्सिटी में अपने ऑफिस में काम, आप कहते हैं हो गया यार अब थोड़ा रुको, 10 मिनट बाद करते हैं यार इसे, चलो यार इसे कल करते हैं, अब आज नहीं होगा, अब आज काम बंद करो यार। Your body knows how to put stop loss, but your mind doesn't know how to put stop loss, and that is the key। तो मैं आपसे 2 चीजें शेयर करूंगा, बिल्कुल इनोवेटिव नई बात बता के जाता हूँ। स्ट्रेस को करने के लिए क्या है, आपको एक स्टॉप लॉस टेक्निक सीखनी है, उससे पहले एक वोकैब्युलरी में चेंज करना है, उसे मैं कहता हूँ वोकैब्युलरी कंट्रोल। क्या होता है, आप किसी भी चीज को, जब भी आप कोई शब्द बोलते हैं, you don't see them as letters, you see all the words that I am saying or you are saying in picture। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं एप्पल, तो आपके दिमाग में APPLE नहीं आएगा, आपके दिमाग में या तो कोई लाल रंग का सेब आएगा या फिर कोई एप्पल का प्रोडक्ट आएगा। ये पॉसिबल नहीं है कि दिमाग में लिखा APPLE आए, कभी नहीं होता है। द वर्ड्स आर स्टोर्ड एज पिक्चर्स इन अवर मेमोरी। तो इसलिए जब भी आप शब्द बोलते हैं तो उसके साथ एक पिक्चर आती है और पिक्चर के साथ एक इमोशन आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं सी बीच, तो आपको लहरें दिखेंगी, वो हवा लगेगी, वो फीलिंग साथ आएगी। तो उसके साथ पिक्चर्स में हम स्टोर करते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, हम शब्द नहीं देखते।
वहां SCABACH लिखा नहीं आता जब मैं आपको कहता हूँ सी बीच, आपको लहरें दिखाई देती है और फिर उसके साथ इमोशन आती है, इमोशंस क्रिएट होती है। तो अगर आपका वोकैब्युलरी कंट्रोल ठीक है तो आपका इमोशनल कंट्रोल बेटर होगा, और इमोशनल कंट्रोल बेटर होगा तो आपकी मेंटल स्टेट और स्ट्रेस कम होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यार कुछ चटपटा सोचिए, गोलगप्पे, चाट, हाँ दही भल्ले, वाह क्या बात है, टिक्की चाट। तो आपने मेरे हिंदी के शब्द नहीं देखे, आपने वो सारी चीजें देखी और मुझे विश्वास है कि कुछ के मुंह में पानी आ गया। कहाँ से आ गया पानी? कहीं टिक्की चाट तो नहीं सामने रखी मैंने, लेकिन उन शब्दों से आपने दिमाग में वो पिक्चर क्रिएट हुई और पिक्चर ने इमोशन क्रिएट करी और आपके मुंह में पानी आ गया। तो क्या करने की जरूरत है? जब भी आप कोई वर्ड कहते हैं, आजकल खूब फैशन चलेगा, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, सेशन कल मिल रहा था रोटरी क्लब में, आई वाज चीफ गेस्ट समवेयर, तो वहाँ रोटरी क्लब वाले कहते सर बहुत आजकल एंजाइटी है। आई इमीडिएटली स्टॉप, एंजाइटी है सर, टेंशन है सर, सैलरी ठीक नहीं, बहुत मूड खराब है। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हम बहुत सारे ऐसे शब्द यूज करने लगते हैं, सुनने में बड़े अमीर से लगते हैं, बड़े बड़ी सी फीलिंग होती है, बड़ी आम आदमी को थोड़ी होता है, तो बड़े लोगों को तो पैसे वाली फीलिंग आती है। दैट इज ए प्रॉब्लम। देखिए आप अगर शब्दों की हायरार्की देखें, जीवन में हम क्या करते हैं, हम किसी चीज के लिए पहले कंसर्न होते हैं, यानी कि नहीं, कोई मैं घटना घटी। नहीं, डॉक्टर राजीव आपको म्यूट करने की जरूरत है, थैंक यू वेरी मच। एप्पल ये सब। ऑलराइट, तो आपको आई गॉट स्टेप एनीवे, तो आपको करने की क्या जरूरत है? शब्दों को, वोकैब्युलरी को चेंज करने की जरूरत है। जैसे ही आप कहते हैं कंसर्न, तो आपके दिमाग में चीज है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, उसका कोई हल भी आपके पास छोटा मोटा भी पक्का नहीं है लेकिन है। कंसर्न का सेकंड स्टेप है वरी, आपके पास अब हल नहीं है, आपको चिंता होने लगी है क्या होगा। फिर तीसरा स्टेप है एंजाइटी, डिप्रेशन, लेकिन हम यार थोड़ा डिप्रेसिव लग रहा है आज, एंजाइटी हो रही है यार बहुत ज्यादा, बड़े बड़े होने की फीलिंग आती है। लेकिन डू यू रियलाइज द मोमेंट यू सी ए वर्ड यू स्टार्ट क्रिएटिंग पिक्चर्स एंड इमोशंस। मैंने अभी आपको करवा के दिखाया, अभी क्या भी किया आप सबने। तो क्या करने की जरूरत है? जब भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, आप अपने आप से कहिए चैलेंज है, रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये चैलेंज है। द मोमेंट यू से वर्ड चैलेंज, दिमाग चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहता है, वो उनसे पार पाना चाहता है, दिमाग में अलग तरह के जूसेस फ्लो करने लगते हैं। यू वांट टू ओवरकम ऑल चैलेंजेस इन योर लाइफ। सैलरी अच्छी नहीं आ रही है, पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, जॉब नहीं सही चल रही है, रिश्ता सही नहीं चल रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं, ये सब चैलेंज है। When you see use words प्रॉब्लम, तो वो नेगेटिव है, वो आपको नीचे खींचता है, उससे रिलेटेड पिक्चर्स आती है। तो मैं चाहता हूँ आप अपने माइंड में जो चीजें हैं, वरीज को और उसको छोड़ दीजिए, कंसर्न रहिए। ऑलवेज से आई एम कंसर्न्ड, और दिस इज अ आई एम कंसर्न्ड अबाउट दिस चैलेंज, दिस आई नीड टू ओवरकम, सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग। तो दूसरा, माइंड को मैंने कहा स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, आप मेरी बात इतनी देर में समझ गए होंगे। तो स्टॉप लॉस कैसे लगाएं? आपसे मैं कहूं किसी चोर को घर की चाबी दे दीजिए, आप देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। अब आपको जो स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाते हैं वो कहते हैं यार थॉट्स को कंट्रोल करो, इमोशन को कंट्रोल करो। भैया वो नहीं होती, दिमाग ही तो कर रहा है क्रिएट, दिमाग ही तो वो चोर है जो तंग कर रहा है, और आप कह रहे हो उसको चाबी दो, उसको कह रहे तू कंट्रोल कर। मैं आपको कहूँ यार कंट्रोल करो आप अपने थॉट प्रोसेस को। आप लोग यार होता नहीं, साला वही का वही सोचता जा रहा है, यार बड़ी मुसीबत हुई है। थॉट डजंट, you don't control, mind doesn't control mind, you have to put stop loss, mind doesn't know how to put stop loss, क्योंकि वही तो वो चोर है जो समस्या क्रिएट कर रहा है। तो करने की क्या जरूरत है? What we will do is we will use your body to put a stop loss on your mind. Hello. My next tip is use your body to put a stop loss on your mind. This is the key. देखिए आप अपनी इमोशनल स्टेट नहीं चेंज कर सकते, कोई आपको ज्ञान बांटेगा यार अपनी इमोशनल स्टेट को चेंज करो, अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट को चेंज करो, नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको कहूं कि आप जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, अपनी बॉडी स्टेट को चेंज कीजिए, आप सब अभी कर सकते हैं। हेलो, बॉडी स्टेट को आप लोग चेंज कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल स्टेट को आप अभी तुरंत चेंज नहीं कर सकते। मैं अभी कहूँ डॉक्टर दीपी उठिए और यहाँ से ऐसे घूम जाइए या उठा के अंगड़ाई लीजिए, शी कैन, दिस यू कैन ब्रिंग ए फिजियोलॉजिकल चेंज, ऑल ऑफ यू कैन। तो मेरे साथ आप लोग अभी करेंगे और हम देखेंगे कि हम बॉडी के कैसे करेंगे। एक्शंस जो है वो आपकी यू कैन चेंज योर एक्शंस एंड योर एक्शंस विल चेंज योर थॉट्स एंड इमोशंस एंड योर स्टेट ऑफ माइंड। तो क्या करने की जरूरत है?
सेल्स में जब सिखाता हूँ तो वहाँ एक टेक्निक होती है प्राइमिंग, एंकरिंग, मिररिंग। आप सबको पता होगा, मैनेजमेंट के बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं। प्राइमिंग इज बेसिकली प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर डूइंग समथिंग। तो करने की क्या जरूरत है? आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। जब आप डिप्रेस स्टेट में होते हैं, स्ट्रेस स्टेट में होते हैं, आपके कंधे थोड़े झुके होते हैं, आप ऐसे बैठे होते हैं, आपका कर्व नीचे की तरफ होता है, इन्वर्टेड होता है होठों का कर्व, आपकी सांस थोड़ी इरेगुलर चल रही होती है, डिप्रेशन, टेंशन यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे? हम बॉडी का स्टेट को चाहिए, हम कैसे करेंगे? वील पुट योर शोल्डर्स ब्रॉड। हम थोड़ा ऐसे बैठेंगे, हम थोड़ा मुस्कुराएंगे, जानबूझकर मुस्कुराएंगे। We will have a broad shoulder, we will have a broad smile, we will have broad breaths. हम थोड़े डीप ब्रेथ लेंगे। मैं चाहता हूँ आप सब लोग अभी के अभी जहां जिस स्टेट में बैठे हैं, broaden your shoulders, just broaden your shoulders, broaden your smile, take deep breaths, smile। और एक गाना सीटी बजाइए, और अगर सीटी नहीं बजा सकते हैं तो मन ही मन कोई गाना गुनगुनाइए। और ये करते हुए एक बुरा सा थॉट सोचिए। नहीं सोच पाएंगे because you have just put a stop loss on your mind. तो अगली बार जब थोड़ी टेंशन में हो, तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, use a broad body language, broad smile, broad shoulders, broad deep breath, and then prepare yourself and a song. मुस्कुराइए, बात बनाइए और देखिए बात। तो क्या कीजिए? कल सुबह से हर रोज सुबह उठिए, मेरे सेशन के बारे में सोचिए, किसी काम के बारे में सोचिए, चासर साहब का सोचिए, काम कुछ और सोचिए, किसी और घटना को देखिए, कोई गाना याद कीजिए, सुबह सुबह अपने आप को प्राइमिंग कीजिए। प्राइमिंग, एंकरिंग, मिररिंग कहते हैं। प्राइमिंग कीजिए, दिन को प्राइमिंग से शुरुआत कीजिए विद ए ब्रॉड शोल्डर, ब्रॉड स्माइल, ब्रॉड ब्रीदिंग, ब्रॉड आईज एंड सिंगिंग ए सॉन्ग एंड स्माइलिंग। आई प्रॉमिस यू विल मेक इट ए हैबिट। दिन में भी 2-4 बार कीजिए। Suddenly you will realize that you have learned to put stop loss on your mind. So folks, keep putting the stop loss. This is the key to controlling the stress and you should be able to do it. और एक दूसरी बात जो मुझे कहनी है, आज ही सुनी, कल परसों से मेरे को घूम रही थी, खा रही थी। मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं, मिरेकल्स होते हैं, भगवान करने नहीं आता, मिरेकल आप करते हैं। आप जैसे पढ़े लिखे अच्छे लोग, डॉक्टर्स लोग, ये मिरेकल क्रिएटेड है। डॉक्टर राजीव अग्रवाल करते हैं, त्रिशा करती है, डॉक्टर रविंद्र करते हैं, डॉक्टर संगीता करती है, अल्फा करती है, डॉक्टर अल्फा, मिसेस अल्फा घोष करती है, आप सब लोग करते हैं, डॉक्टर बसंती करते हैं। कैसे करते हैं? डॉक्टर दीप्ति माहेश्वरी करती है। एक कंपनी का एनुअल फंक्शन था, लास्ट 2 मिनट है और उसके बाद मैं आपकी बात को विश्राम दूंगा। तो मिरेकल करेंगे, कैसे करेंगे? एक कंपनी का एनुअल फंक्शन हुआ करता था, 300 लोगों की कंपनी थी और हमेशा ये तय होता था कि कंपनी के एनुअल डे पे या यूनिवर्सिटी के एनुअल डे पर सब लोग से 500 रुपए लिए जाते। 300 एम्प्लॉय थे, सबसे 500 रुपए ले लिए तो टोटल 1.5 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता था। एक बॉक्स में डाल देते थे और ये तय था कि उसको मिलेगा जिसकी पर्ची उस दिन के नाम की निकलेगी। सबके नाम की पर्ची बनाकर रख दी जाती थी और दे दी जाती थी और उसमें से बॉस आकर निकालते थे, जिसके नाम की निकलती थी उनको मिलता। तो ऊर्जा रहती थी, माहौल बना रहता था, जोश बना रहता था कि पर्ची निकलने वाली है। तो फाइनल डे वो आ गया, फंक्शन था, माहौल में गर्मी थी, कुछ करंट दौड़ रहा था, सब नाम लिखकर पर्चियां डाल रहे थे। एक जवान बच्चा बैठा हुआ था, त्रिशा जैसी कोई एक बच्चा बैठा हुआ था। उसने कहा लिखूं, अपना नाम लिखने लगा, लेकिन लिखते ने बिना हाथ रुक गया। उसके मन में आया कि यार वो जो सफाई वाली आंटी हैं, उनके बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, उनको 1-1.5 लाख रुपए की जरूरत है, काश ये उनके निकल आए 1.5 लाख रुपए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि उनका निकल जाए। तो वो अपना नाम लिखे, उसने सोचा कि चलो मैं भी सफाई वाली आंटी का नाम लिख देता हूँ। वैसे तो उनका 300 में 1 चांस है, मेरा नाम पर्ची भी उनके नाम की डल जाएगी तो उनके चांस दुगने हो जाएंगे। तो उससे रहा नहीं गया, उसने वो नाम अपना लिख दिया और पर्ची डाल दी। थोड़ी देर में बॉस आए तो एकदम हंगामा सा, करंट सा दौड़ गया, सब लोग हो रहा था किसकी मिलेगी। और ये लड़का मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, ईश्वर कुछ ऐसा कर आज की आंटी की पर्ची निकला। इकलौता लड़का, वो चला गया तो क्या होगा, उसको सख्त पैसे की जरूरत है। आज खुदा अगर तू है तो आज मिरेकल कर दे, आज मिरेकल कर दे और आंटी के नाम की पर्ची निकाल दे। प्रार्थना कर रहा था, बॉस आए, हाथ डाला, एक पर्ची निकाली, खोली और धीरे से पढ़े, सफाई वाली आंटी का नाम था, सफाई वाली आंटी का नाम था। वो दौड़ कर आई, डेस्क पे ले गई, बोली थोड़ी देर के लिए आई थी, बच्चे की चिंता थी, बहुत बहुत थैंक यू, गॉड यू आर ग्रेट। ईश्वर मिरेकल करता था, सुना था, देख भी लिया। और ये लड़का भी सोच रहा था ईश्वर लाख लाख शुक्र है, मिरेकल कर दिया, थैंक यू वेरी मच। चली गई आंटी, ये टहल रहा था, पार्टी हो रही थी, झुमदा वहां गया, बाउल के पास देखा एक पर्ची बाहर गिरी रह गई थी, खोल के देखी,
किसी और की थी, उसमें भी आंटी वाला नाम लिखा होता है, थोड़ा चौंका। सफाई वाली आंटी का नाम लिखा होता, तीसरी खोली, चौथी खोली, सारी पर्चियां खोल डाली, सब पर सफाई वाली आंटी का नाम लिखा हुआ था। दोस्तों, ईश्वर मिरेकल नहीं क्रिएट करता, हम और आप करते, हम और आप करते। जब अच्छे लोग, जब सक्षम लोग आगे बढ़कर जुड़ते हैं, दूसरों तक पहुंचते हैं। ये पीड़ा, ये तनाव, ये स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि कहा था कि कमजोर रिश्तों, शब्दों के शुरू में कहा गया, जीनी ने कहा शायद, कि रिश्ते कमजोर हैं, लोग साथ नहीं खड़े, इसलिए तनाव है। अगर आज ये विश्वास हो कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं और हम एक दूसरे का मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं, आई प्रॉमिस यू देयर विल नॉट बी एनी स्ट्रेस। Thank you very much for inviting me over here in such a august and wonderful gathering. Thank you very much. I'm so honored. And thank you very much for your time and attention. Have a great life. Keep smiling. Keep cheering. Thank you very much. So there are two questions. Some of them have asked. Rashmi Sahu. Rashmi Sahu has Yes, please. asked a question: how to face challenges, everyday challenges? She's asked. हर दिन I said, कैसे? Yes. half of the problem is solved because you are seeing them as challenge. See, if you see any, मैं एक situation बताता हूँ. In one of my sessions, there was one lady sitting, and मैंने बहुत सारे patients के साथ किया, and all of them have done very well. I have been in counseling, 100-200 तलाक बचा चुका हूँ, 50-100 suicide भी बचा चुका हूँ, तो I can confidently say this. People come to me, they say there is a problem. I say remove that problem. I say all of you think of the problem that you are facing and remove word problem and put word challenge. You have just done half of the job. When you say challenge, एक लेडी महिला उठी सेशन में, कहती सर कल तक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था, ये नहीं हो रहा था, पीछे छोड़ दिया था, बर्नआउट हो गया था, मैं उसको प्रॉब्लम देख रही थी, अभी आपने कहा चैलेंज और मैं देख रही हूँ एज ए चैलेंज, तो अलग जूसी जा रहा है। चैलेंज मतलब कैसे नहीं होगा, ये जाएगा, मुझे करना है, करेंगे। So thank you very much. That is one way is challenge. Second, trust in God. I promise you, I'm a God-fearing man, but not fearing, God-loving man. There is no reason to fear God. ट्रस्ट, जो कि अभी कहा था डॉक्टर लाइला सैमन में कि देयर इज ए रीजन टू हैपन ए थिंग। अगर कोई ऐसी चीज घट रही है जो अभी हमें समझ नहीं आ रही है, बिलीव मी, इट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड यू, बट दिस इज राइट। कौन बनेगा करोड़पति में एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा था कि आपके मन की हो तो बहुत अच्छा, और आपके मन की ना हो तो उससे भी अच्छा ईश्वर के मन की हो रही है। और अगर वो पिता है और माता है, जैसा कि हम ईश्वर को कहते हैं परम पिता और माता, तो माँ बाप से बेहतर तो कोई नहीं कुछ बेहतर हो सकता। So trust is another thing that will help you to go through daily challenge. Believe that thing, better things are. Thank you very much for the question. No question. Saloni Agrawal. So there is one more question. Saloni Agrawal has asked, how to overcome depression and oversleeping problem? Thinking about future. मतलब because she thinks over, so she's not having. देखिए डिप्रेशन, मैंने वो कहा ना, वर्ड डिप्रेशन, आई मीन डिप्रेशन वो बड़ा, मैंने कहा पैसे वाला वर्ड है, बड़ा अच्छा हैवी वर्ड लगता है बोलने में, डिप्रेशन हो गई है सब। देखिए, इफ यू आर डिप्रेशन, इफ यू आर क्लिनिकली डिप्रेस्ड, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू हैव टू गो ऑन मेडिकेशन एंड टेक हेल्प ऑफ समवन लाइक त्रिशा एंड पाठक साहब हु विल रियली हेल्प यू आउट। इफ यू आस्क मी क्लिनिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन के सिम्टम्स आपको मालूम चाहिए, बिस्तर से उठ नहीं रहे हैं, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान नहीं है, रोने को बार बार मन करता जा रहा है, और नींद बहुत आ रही है, या भूख बहुत ज्यादा लग रही है, या बिल्कुल नहीं लग रही है। आप सबको ये सब बातें पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर इन दैट काइंड ऑफ स्टेट, प्लीज सीक हेल्प। क्या है, हम अपने माइंड को अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाई काउंसलर्स और सम अदर पीपल आर नीडेड। Reach out for help because they can handle and put a stop loss in our mind, hold our hand and take you to the right direction. There is a big advantage in reaching out to counselors and guides and people like Trisha and Dr. Partha. Second, ओवर स्लीपिंग की प्रॉब्लम नहीं है। ओवर स्लीपिंग की प्रॉब्लम ये है कि दिक्कत ये, आप जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन उठ क्यों नहीं पाते, क्योंकि आप सेट कर रहे हैं भारी भरकम टारगेट। मेरी माता जी कहते थे तुम पिछवाड़े को धूप लगा के उठते हो, मतलब यू स्लीप, आई मीन गेट अप सो लेट कि बाय द टाइम द सन इज हाई द स्काई। जो कर लोग मुझे मिलते हैं कहते हैं सर ना कितने बजे उठता है, 8 बजे। कितने बजे उठो? सर कल से 5 बजे। मैंने कहा तू क्या, तेरे पिताजी भी नहीं उठ सकते बेटा।
यू आर सेटिंग ए ह्यूज टारगेट, उठ नहीं पाओगे तुम। भैया छोटे छोटे करो, सुखी हो जाओगे, अच्छा भी लगेगा। कल 7:30 बजे, 7 दिन 15 Sir, sorry, in between I'm intervening. Actually, because I have a lot of questions from Saloni, because I am looking after the chat box. So actually her problem is that she is not having oversleeping. She is suffering from that she is not having proper sleep because of overthinking. हाँ तो अब यार आपने सवाल बदल दिया, हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। सर मैंने लिख के दिया, यू शुड हैव ए कंप्लीट सेशन ऑन ओवरथिंकिंग। आई हैव ए सेशन ऑन ओवरथिंकिंग व्हिच आई हैव डन फॉर जेएससी। सर एक्चुअली मैं बीच में इसलिए इंटरवीन किया क्योंकि जो सवाल आ रहे हैं आपकी बातों के बाद, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। और स्ट्रेस की बात जब आती है तो सवाल बहुत होते हैं। थोड़ा सा सम अप करूंगी क्योंकि समय की कमी है, तो मैं आपसे 2-3 सवाल इकट्ठे बोलूंगी जो आप आंसर करें, जो बराबर चैट बॉक्स में आ रहे हैं कि ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम है, स्लीपिंग डिप्रेशन की वजह से नहीं आती तो क्या करें, और नेगेटिव लोग अगर आसपास है तो उस नेगेटिविटी से कैसे बचें। तो ये 3 सवालों के जवाब हमें आपसे चाहिए, और उसके बाद ही हम आपको यहाँ से जाने देंगे। ओके, ऑलराइट। तो मैं तीनों सवालों के जवाब लेता हूँ और इसको ना पलट के ले लेता हूँ। पहले तीसरे सवाल को लेता हूँ, आसान सवाल पहले हल कर लेना चाहिए एग्जाम में। तो नेगेटिव लोगों से कैसे बचे। सर देखिए, आपको ना दुनिया में 2 तरह के लोग मिलेंगे और बड़ा सिंपल काम है और बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपकी पाइपलाइन में, पानी की पाइपलाइन में कचरा भर जाए तो फ्लो रुक जाता है। इनफैक्ट आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। आप सबको ये बात अच्छी तरह से पता है। आप अपनी जिंदगी के फ्लो में कैसे लोगों से मिल रहे हैं, 3 लेवल पे देखिएगा। टास्क, क्या आप अपने जीवन में चौक भर रहे हैं। आपके पास एक तिजोरी है, बैंक में आप जाते हैं, अकाउंट खोलते हैं, एक लॉकर आपको मिलता है, छोटा सा लॉकर होता है जहां पर आप अपनी बड़ी कीमती चीजें रखते हैं। आप सबने कभी ना कभी लॉकर लिए होंगे और उसमें कीमती चीजें रखी होंगी। मुझे ऐसा कोई आज तक नहीं मिला जिसने लॉकर में कचरा भर के रखा हो। तो जिंदगी का जो ये आपको मिला है खुशी का लम्हा, ये अपनी जिंदगी के लॉकर में आप क्या कचरा भर रहे हैं वो जरा देखिए। 3 लेवल पे आप कचरा भरते हैं जो आपकी पाइपलाइन को चोक करता है। 1 इज टास्क, क्या आप ऐसे काम कर रहे हैं जो कचरा है। कभी कभार फेसबुक देखना है, ठीक है, लेकिन 50 मिनट अगर आप बैठ रहे हैं तो कचरा कर रहे हैं। क्या आप लुक आउट फॉर योर टास्क। सेकंड, वो लोग जो नेगेटिव लोग हैं, 2 तरह के लोग मिलेंगे साहब, आप बिल्कुल समझिए। किसी दिन त्रिशा परेशान बैठी हुई थी, थोड़ी दुखी थी, उलझन में थी, दुखी नहीं थी, दुखी हो ही नहीं सकती। एक सहेली आई, पूछा क्या हो गया। यार क्या बताऊं, एक तो काम नहीं ठीक चल रहा है, नोटिस पीरियड चल रहा है, अभी काम धाम सही चला नहीं है, जुगाड़ नहीं हुआ है, इनकम की भी चिंता है, बाकी और घर में माता जी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या होगा, कैसे कटेगी साली, समझ नहीं आ रही है। ये बहुत दुखी थी। इन्होंने अपने एक दोस्त से कहा, वो उनसे भी ज्यादा नेगेटिव हो गया। त्रिशा तू तो भाई, तेरा तो काम लगा, तू तो गई। एक तो ये दुखी, ऊपर से दोस्त ऐसा कमबख्त आ गया, इसने बिल्कुल खा गया। दूसरी किस्म के दोस्त कौन से होंगे। ये पहुंची, पाठक जी आए, इन्होंने पूछा क्या हो गया त्रिशा। सर ये हो रहा है, अभी नौकरी का नोटिस पीरियड है, इनकम का कोई सही जुगाड़ हुआ नहीं है, आगे लाइफ बड़ी अनसर्टेनिटी लग रही है, घर में माता की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पता नहीं कैसे निपटे, क्या नहीं, अब तो मुझे डर लग रहा है। तो वो कह रहे यार तू कर डालेगी, तूने पहले भी इससे बड़ी बड़ी समस्या हल करी, तू तो हमारा पावर हाउस है, तेरे को दुख के तो हम सीखते हैं यार, कम ऑन, यू विल कम आउट ऑफ इट। हेलो, समझ आ रही है जिंदगी में कैसे दोस्त बनाने हैं, और ये भी समझ आ रहा है कि जीवन में कैसा दोस्त बनना है। हेलो, find out people who see things good in you, who push you when you are down. आप माँ बाप चुन नहीं सकते, उसके अलावा बाकी सब लोग बड़े केयरफुली चुनिए। स्टे अवे, उनको बाहर फेंके, उन लोगों का कोई काम नहीं है। अगर कोई एक चीज आपको किसी ने सिखाई है, कोरोना ने, तो वो सिखाई है कंटेनमेंट जोन। आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग जो सुन रहे हैं, 400 लोग, वो इस बात को जानते हैं कंटेनमेंट जोन क्या है। वहां उन लोगों को रख दिया जाता है जिनमें कोई वायरस है, जिनकी तबीयत खराब है, ताकि वो उन लोगों से ना मिल पाए जो कि ठीक है, ताकि उनकी तबीयत खराब हो जाए जो ठीक है। आपकी जिंदगी में आपको थोड़ा सा एक इन्वेंटरी बनानी है, कौन से थॉट्स मेरे कंटेनमेंट जोन में जाने लायक है, कौन से रिश्ते कंटेनमेंट जोन में जाने लायक है, डिपार्टमेंट के कौन से लोग कंटेनमेंट में जाने के लायक है, ताकि वो उन लोगों के संपर्क में ना आए जो अच्छे हैं, जो थॉट्स अच्छे हैं, जो लोग अच्छे हैं। बाहर निकाल के फेंकिए उन लोगों को। तो पहले तो उस सवाल का जवाब हो गया, यू डोंट डिजर्व बैड पीपल, यू डिजर्व गुड पीपल, पुश पीपल, बुलिश पीपल जो आपको आगे लेके जाए। दूसरा सवाल क्या था डॉक्टर संगीता, जल्दी से बोल दीजिए, बाकी स्पीकर सोच रहे हैं यार सारा टाइम ये ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, पकड़ के मारेंगे मुझे बात। सर नहीं, बस ये दूसरा सवाल यही था जो आपने लगभग इसमें जवाब दिया कि जवाब नींद नहीं आती है।
हाँ, नींद नहीं नींद नहीं आती आती क्योंकि ज्यादा सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, और क्या ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम है? ओवर थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग में ना आप राई को पहाड़ बना देते हो। मैंने अभी बताया, बॉडी स्टॉप लॉस लगाना शुरू कीजिए ओवर थिंकिंग पे। ओवर थिंकिंग एक सेक्शन दोबारा कीजिए, नेशनल वर्कशॉप कीजिए। आई प्रॉमिस यू ओवर थिंकिंग सबको खत्म कर डालेंगे। कोई ओवर थिंक नहीं कर। हम सबकी बड़ी समस्या आई है। मेरे यहाँ जितनी मेकअप ब्रेकअप की दुकान खुली है वो सब ओवर थिंकिंग की वजह से। फालतू बातें सोचते हैं बैठ के, सर इस जैसी दूसरी नहीं मिलेगी, अब क्या होगा। अरे मैंने कहा भैया, यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर क्रेजी। So whenever we are about to lose a job, whenever we are about to lose a relationship or a home or a car, we suddenly start overthinking. We need to really get out of it. Stop loss से नींद नहीं आ रही है, उसके लिए सिंपल मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, आज से ही कीजिएगा। रात को जब बिस्तर में लेटे कुछ मत कीजिए, आंखें बंद कीजिए, सिर्फ अपनी ब्रीथ को आते जाते देखिए। यहाँ से गया, ऊपर गया, वापस आया, नीचे गया, पेट तक गया, पेट से वापस आया, ऊपर आया, नाक से बाहर आया। 5 मिनट कीजिए, मेरी गारंटी है आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आप कब सो जाएंगे। Keep on doing it, दिमाग बार बार भाग जाएगा, पकड़ के लाना पड़ेगा। Thank you very much. Any other questions? नो सर, क्वेश्चंस तो खैर हैं, बट यस पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम इज देयर, और डेफिनेटली आपकी जो टिप्स आज दी गई हैं तो डेफिनेटली लोग उसको ट्राई करेंगे, और ट्राई हाँ। करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने तो बता दिया, हाँ, लेकिन इसको ना प्रवचन की तरह सुन के बस चले जाना कि ऐसे हाँ, बहुत कर लीजिएगा। With a broad shoulder, broad smile, broad breathing and a अच्छा singing. हाँ सर, इससे एक और सवाल भी है कि ये जो ब्रॉड शोल्डर वाला आपने टिप दिया है, ये क्या ये 10 साल के बच्चे पर भी काम करेगा? ये तो साहब किसी के, मैं तो कह रहा हूँ आप अभी कोशिश कीजिए, अभी किसी बच्चे को बेटा ऐसे बैठ, जरा बेहतरीन मुस्कुरा, बड़ी बड़ी सांसें ले, गाना गुनगुना, सीटी बजा, और फिर कोई गंदी बात सोच, नहीं आई। चलिए, thank you very much. Thank you, sir. Thank you. And I now give session to Dr. Deepti Maheshwari to propose the formal vote of thanks to wrap up this inaugural session and to wrap up this wonderful speech given by Agrawal sir and wonderful tips given by sir. It's over to Dr. Deepti. Sir, very good afternoon, sir. Good afternoon. Pathak sir and Trisha, Lala ma'am and Sandhya ma'am, Rajiv sir. Very good afternoon to all members, dear students, faculty members also. On the behalf of Faculty of Commerce and Management of RNTU, BSS, Anand Vihar College and Vardhaman College, Bijnor, it gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this webinar to dynamic and great personality, Shri Rajiv Agrawal sir. I express my gratitude to sir for gracing today's webinar and delivering very interesting and thought-provoking address. I am sure all the participants have taken notes of your suggestions and implement in their regular life. I am also thankful to all team members with us. At last, actually, I want to close my words with these lines. मंजिलें बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं. मंजिलें बहुत हैं, अफसाने बहुत हैं. इम्तिहान जिंदगी में आने बहुत हैं. जो मिला नहीं उसका क्या गिला करना, जो मिला नहीं उसका क्या गिला करना. दुनिया में खुश रहने के बहाने बहुत हैं. और उसका एक साक्षात नाम राजीव सर है. क्या बात है. Thank you very much. Thank you very much to all of you. Thank you very much. Can I leave now? Yes, sir. Thank you. Thank you so much, Rajiv sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Deepti ma'am. Let's move on to the main part of the session, the main talk. We are privileged of having two luminaries as expert speakers. Our first expert speaker is a certified clinical hypnotherapist and internationally certified Access Bar therapist and the founder of Anahata, which is set up with the objective of helping other people heal issues that they are experiencing in their daily life and helping them take steps needed to create a life of their dreams. An engineering graduate from Manat, Bhopal, she has over 7 years of work experience in a leading public sector enterprise, BHEL Bhopal. Let me take this opportunity to invite Ms. Trisha Kaushik to give insights on the theme, Innovative Methods to Manage Stress. Over to you, Trisha. Thank you so much, ma'am. I'll just share my presentation, just a second. Please.
It's visible, Trisha. Your It's visible. Yeah. This much volume is fine, ma'am. Yes. Okay. Yeah. So let's start with this innovative methods to heal stress. हम सबके लाइफ में एक जिनी होता तो हम क्या करते? हमारे जितने भी ड्रीम्स और विशेस हैं हम उसको पूरा करते, राइट? सो द गुड न्यूज इज कि हम सबके पास हमारा एक पर्सनल जिनी है जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है. अब माइंड होता क्या है? लोग ऑफन कंफ्यूज करते हैं कि माइंड जो होता है वो इक्वल टू ब्रेन होता है, पर ऐसा नहीं होता. ब्रेन अगर हार्डवेयर होता है तो माइंड सॉफ्टवेयर है. इफ आई हैव दिस फोन, तो जो हार्डवेयर है वो ब्रेन है, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेदर इट बी एंड्रॉइड और iOS और माइक्रोसॉफ्ट, वो माइंड होता है उसका. तो अगर हमारे सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस होंगे तो ऑब्वियसली हमारा हार्डवेयर किसी काम का नहीं होगा. इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं. हम सभी जानते हैं कि हमारे दो माइंड्स होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड. हम जो भी सोचते हैं, समझते हैं, लॉजिक लगाते हैं, एनालाइज करते हैं, वो सब हमारे कॉन्शियस माइंड का काम है, पर वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 12% होता है. रिमेनिंग 88 to 90% जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसको हम हिंदी में अवचेतन मन बोलते हैं. वो 88 to 90% होता है. और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कर्सर आपको दिख रहा है, ये दोनों सेपरेट होते हैं एक फिल्टर से जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फिल्टर. अब कोई भी नहीं चाहता कि उसके जीवन में कोई रिलेशनशिप इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, फिजिकल एलिमेंट्स हो या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, पर हो जाता है. क्यों होता है? क्योंकि ये सब सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग चल रही है, जो हमारे कॉन्शियस रजिस्ट्रेशन के बाहर है, उसके कारण होता है. अब हम इसको मोटे मोटे तौर पर ये समझ सकते हैं कि जो क्रिटिकल फिल्टर है वो एक चौकीदार की तरह काम करता है, जो देखता है कि उसको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या डालना है, मतलब किसकी एंट्री अलाउ करनी है, किसकी नहीं करनी है. और नेचर ने या भगवान जैसा कह लें, हमें ऐसा बनाया है उन्होंने कि जो भी चीज एक बार सबकॉन्शियस माइंड में जाती है वो आगे जाके जीवन में फलीभूत होती ही है. और अक्सर हमने जीवन में देखा है कि हमें कोई तकलीफ होती है और हम कॉन्शियस एफर्ट्स डालते हैं, पर तब भी उससे ऊपर नहीं आ पाते. क्यों? क्योंकि वो प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 6000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल रहता है एज कंपेयर टू कॉन्शियस माइंड. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सबकॉन्शियस माइंड में एक बार चीज पहुंचती है वो बीज की तरह वहां पहुंच जाती है, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़ी होती जाती है और एक दिन विशाल रूप ले लेती है, और फिर वो हमको लाइफ में इशू और चैलेंज की तरह दिखती है. अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, ये क्रिटिकल फिल्टर जो है ये एक चौकीदार की तरह काम करता है, और जब ये ओपन होता है तो वो जो इंफॉर्मेशन है या जो भी बीज है वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाता है. और ये क्रिटिकल फिल्टर तब ओपन होता है हमारी जिंदगी में जब हम किसी इमोशन से ओवरवेल्म होते हैं, भले ही वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव. इट कुड बी हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर. जब भी हम कोई इमोशन से ओवरवेल्म होते हैं ये क्रिटिकल फिल्टर ओपन होता है, और खटाक से जो हम सोच रहे होते हैं वो बीज के रूप में सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मेरे पास एक क्लाइंट आया, ताकि आपको समझ में आएगा कि जैसा कि राजीव सर ने कहा था, हमारा जो थॉट होता है वो हमारी लाइफ को कितना इम्पैक्ट करता है. मेरे पास एक क्लाइंट आया जिसको साल भर से माइग्रेन का प्रॉब्लम था और हफ्ते में 3 अटैक आते थे. मैं आपको हिप्नोसिस का ही एक एग्जांपल बताऊंगी, हिप्नोथेरेपी का. जब उनको मैंने रिग्रेस पैक किया तो वो एक इवेंट में पहुंचे जहाँ पे वो 6 साल के हैं, और 6 साल की उम्र में वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और मुझे पुलिस वाले की ड्रेस पहननी है, पर मेरे पापा बोल रहे हैं कि बेटा ट्राइबल ड्रेस पहनो. पापा ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी, बच्चा फाइनली कन्विंस हो गया. बच्चे ने
ट्राइबल ड्रेस पहनी। मैंने पूछा फिर कि नेक्स्ट अब आपको क्या दिख रहा है, तो उन्होंने बोला मैं 6 साल का हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन जीत गया। अब हम ऐसे सोचेंगे तो हमें लगेगा भाई खुशी से कैसे माइग्रेन रिलेट हो सकता है। जब फर्दर पूछा, प्रोब किया, तो बोले मैं ये सोच रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं सोच रहा हूँ एज अ 6 ईयर ओल्ड कि मेरे पापा सही डिसीजन ले रहे हैं। मैं अपने बारे में निष्कर्ष निकाल रहा हूँ कि मैं डिसीजन नहीं ले सकता और मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि आगे से मैं डिसीजंस अपने पापा के हिसाब से ही लूंगा। अब ये जो उन्होंने डिसीजन लिया 6 साल के बच्चे ने कि मैं अपने डिसीजन पापा के हिसाब से लूंगा, वो एक बीज की तरह सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और वो पेड़ बन गया। पेड़ कैसे बना कि वो लाइफ में कोई डिसीजन भले ही छोटा हो या बड़ा हो वो खुद नहीं ले रहे थे, वो अपने अंदर की खुद की आवाज नहीं सुन रहे थे। तो उनका जो माइग्रेन था वो एक अंदर से नॉकिंग थी कि बॉस यू आर नॉट टेकिंग योर ओन डिसीजंस इन लाइफ। जैसे ही उसको हील किया तो ऑटोमेटिकली उनका माइग्रेन हील हो गया। तो ऐसे ही हमारे जो डिजीजेस होते हैं भले ही वो साइकोलॉजिकल हो या फिजिकल हो, वो हमारा इमोशन की जब बेंडिंग नहीं होती और जब हम ऐसे सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली डिसीजन ले लेते हैं तो वो प्रॉब्लम्स वर्ड नहीं यूज करेंगे, वो इश्यूज और चैलेंजेस लाइफ में क्रिएट होते हैं। तो जो भी चीज हमें लगती है लाइफ में कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, उन सब के जवाब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। तो बेसिकली माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर है जिसको टाइम टू टाइम जिसका एंटीवायरस चलाना बहुत जरूरी होता है। अब हम देखेंगे वो हम एंटीवायरस किस किस तरीके से चला सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूंगी क्योंकि समय उतना ही है हमारे पास। जैसा कि मैंने कहा, जब हम किसी भी इमोशन से ओवरवेल्म होते हैं तो हमारा क्रिटिकल फिल्टर ओपन हो जाता है। उस स्टेट को हम हिप्नोसिस बोलते हैं। ओके, वो एक नेचुरल स्टेट होता है। अब आते हैं डिजीज पे। अगर मैं बैठी हूँ, मेरा पैर दुख रहा है, तो इट्स अ स्टेट इन विच आई एम नॉट एट ईज, तो वो डिजीज है। एक आपको एग्जांपल दूंगी कि कैसे हम जो सोचते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो हमको प्रभावित करता है। सो आवर बॉडी बेसिकली जो है वो कभी झूठ नहीं बोलती। हमारा माइंड झूठ बोल सकता है, हमारी बॉडी झूठ नहीं बोलती। तो हमारी बॉडी हमारी लाइफ को कैसे डिपिक्ट करती है मैं आपको बताती हूँ। हमारे ब्लड में एक कंपोनेंट होता है, एक एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। हम सब जानते हैं कि वो हमारी बॉडी को नर्चर करता है, इधर से उधर ऑक्सीजन कैरी करता है, मिनरल्स कैरी करता है और एक वो एक नर्चरिंग एलिमेंट होता है। अब बॉडी लाइफ को कैसे डिपिक्ट करती है? हमारी जिंदगी में हमको कौन नर्चर करता है? हमारी माँ। तो जब जिंदगी में मम्मी से रिश्ते ऊपर नीचे होते हैं तो रेड ब्लड सेल्स का इशू हो जाता है। एंड अब देखिए, मिडिल ईस्ट जो है वहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ वेजिटेशन नहीं होता। अर्थ को हम मदर बोलते हैं, तो वहाँ सबकॉन्शियसली एक मैसेज रहता है लोगों को कि मदर अर्थ इज नॉट नर्चरिंग अस। एंड रिसर्च हैज बीन डन एंड इट हैज बीन फाउंड कि थैलेसीमिया एक बीमारी होती है जिसमें रेड ब्लड सेल जो होता है वो उसका प्रॉब्लम होता है। तो रिसर्च से पता लगा है कि थैलेसीमिया के मैक्सिमम पेशेंट्स मिडिल ईस्ट में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक सबकॉन्शियस बिलीफ होता है कि मदर अर्थ हमको नर्चर नहीं करती। सिमिलरली बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सोल्जर्स होते हैं, इन्फेक्शन को फाइट करते हैं। इन द सेम वे घर में हमें जो प्रोटेक्ट करते हैं वो हमारे फादर होते हैं। अगर फादर के प्रति परसेप्शन सही नहीं है तो वाइट ब्लड सेल्स में प्रॉब्लम आता है। सिमिलरली हम किसी से अगर इरिटेटेड होते हैं तो हम बोलते हैं आई एम सो पिस्ड ऑफ विद सो एंड सो पर्सन। पिसिंग का लिटरल मीनिंग होता है टू यूरिनेट। तो अगर हम लाइफ में किसी से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हैं तो बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होने लगते हैं। ये स्लाइड मैंने इसलिए रखा है जस्ट टू टेल कि हमारे माइंड का हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है। इन द सेम वे डायबिटीज मतलब बहुत सॉरो बॉडी लेवल पे सेटल हो गया है। हम अपने आप को अगर ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस नहीं करते तो थायराइड इश्यूज होने लगते हैं। अब आते हैं हम स्ट्रेस पे।
स्ट्रेस होता क्या है? जिंदगी में जब हमारे सामने कोई एक सिचुएशन आती है जिसको हम, जो एक्चुअली में हमें लगता है कि हार्मफुल है, या हम उसको परसीव करते हैं, परसीव मतलब हम अपने नज़रिए से उसको मानते हैं कि ये तो हार्मफुल है, तो या तो हम उससे लड़ने की कोशिश करते हैं या उससे भागने की कोशिश करते हैं। इन दोनों ही सिचुएशन में बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होती है, जिसमें ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्रीदिंग चेंज हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाती हैं, और इसको हम बोल देते हैं कि ये स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस जो है उसको हम कैसे हील कर सकते हैं? कुछ छोटे छोटे मैं आपको टिप्स दूंगी जिसको आप डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। दिखने में बहुत छोटे लगेंगे, ऐसा लगेगा अरे इससे क्या होगा, हो सकता है, पर बिलीव मी इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो इट हेल्प्स अ लॉट। सबसे पहले आते हैं हम अफर्मेशंस। किसी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट, राजीव सर ने लास्ट सेशन में कहा था वर्ड्स का बहुत इम्पैक्ट होता है लाइफ पे, वेरी ट्रू। तो जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो जो क्रिटिकल फिल्टर है वो नेचुरली ओपन रहता है, सबकॉन्शियस माइंड की नेचुरल एक्सेसिबिलिटी रहती है। बीज बोने का सबसे सही समय होता है सुबह उठने के जस्ट बाद और रात को सोने से पहले। तो उठते ही और रात को सोने से पहले अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे, जैसे कि ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ ईज जॉय एंड ग्लोरी। एंग्जाइटी है तो यू कैन से आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो ये काफी प्रैक्टिस करते हैं, सुबह उठते ही अफर्मेशंस बोलते हैं, क्योंकि वो बीच हिप्नोसिस का स्टेट रहता है, बीच सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और फिर वो लाइफ में वैसा ही होने लगता है। सेकेंड, ग्राउंडिंग। हम सबके घर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, हमने देखा है वो जो 3 पिन होता है उसमें सबसे बड़ा पिन ग्राउंडिंग का होता है। क्यों? ताकि जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो पहले उसकी ग्राउंडिंग हो जाए और फिर हम वो इक्विपमेंट यूज करें। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पावर स्टेशंस में लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं जो ग्राउंडेड रहते हैं, ताकि अगर लाइटनिंग स्ट्राइक करे तो वो जो स्ट्रेस है वो अर्थ में चला जाए, बाकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स डैमेज नहीं हो। इन द सेम वे जो ह्यूमन सिस्टम है उसकी भी ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो वो ग्राउंडिंग हम कैसे कर सकते हैं? रोज नंगे पाँव 10-15 मिनट कच्ची ज़मीन पर चलें, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है। रिसर्चेस में देखा गया है कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स का हमारी बॉडी पे असर होता है, यूजुअली एडवर्टाइज उसको ऐसे करते हैं कि वो आपकी बॉडी को यंग रखता है, सेम असर नंगे पाँव कच्ची ज़मीन पर चलने से होता है और उससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है, क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो ग्राउंड हो जाते हैं। स्लीप में इम्प्रूवमेंट होता है। अगर कोई चोट लगी है फिजिकल लेवल पे तो उसकी हीलिंग भी बहुत जल्दी होती है, वेरी इफेक्टिव। थर्ड, पानी जब पिए तो बहुत डीप रिस्पेक्ट से पिए, बैठ के पिए। पानी को देखें, बोलें प्लीज हील मी एंड देन ड्रिंक इट। क्यों? एक जापानीज साइंटिस्ट है मसारू एमोटो, जिन्होंने वाटर पे एक्सपेरिमेंट किए। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको पता है, H2O। ओके, उन्होंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अलग अलग वाटर के सैंपल्स रखे और उसको अलग अलग वाइब्रेशन से एक्सपोज किया। जब उन्होंने वाटर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, नॉट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि जो लव और ग्रैटिट्यूड को, जिस वाटर सैंपल को लव ग्रैटिट्यूड के वाइब्रेशन से एक्सपोज किया, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो था वो ऐसे डायमंड रिंग जैसा आया। जिसको डेविल वर्ड से एक्सपोज किया उसका ऐसा आया। एंड आवर बॉडी वी ऑल नो इज 75% वाटर। तो हमारे थॉट्स, इमोशंस से हमें कितना इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप पानी को ये बोल के पियेंगे हील मी, ब्लेस मी, तो वो जो पानी अंदर जाएगा वो डोमिनो इफेक्ट से जो बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी अच्छा कर देगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ वेरी इफेक्टिव टेक्निक्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। नाउ हमें जो लाइफ में अलाइव रखता है वो ब्रेथ है।
पर हम कितना ध्यान देते हैं अपनी ब्रेथ पे? क्यों नहीं देते? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ऐसा होता है कि हमें ब्रेथ बहुत ईजी आती है। ओके, तो अगर ब्रेथ ईजी है और ब्रेथ लाइफ है, इसका मतलब लाइफ भी ईजी है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमने देखा है कि हमारी ब्रीदिंग रेट जो होती है वो फास्ट हो जाती है, ब्रेथ बहुत शैलो हो जाती है। ओके, और जब हम सुकून में होते हैं तो हमारी ब्रेथ बहुत डीप होती है। ये उल्टे तरीके से भी काम करता है। अगर हम अपने ब्रेथ को सही करेंगे तो उस तरीके से हमारा थॉट पैटर्न्स, इमोशंस भी चेंज हो जाते हैं, और उसी पे पूरा प्राणायाम जो है वो इसी कारण से है। तो अब मैं आपको फ्यू ब्रीदिंग टेक्निक्स बताऊंगी विच आर वेरी इफेक्टिव। आप उसको बैठे बैठे कभी भी दिन में कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज इक्वल ब्रीदिंग। आंखें बंद करें जब भी आप स्ट्रेस महसूस करें। 2 काउंट्स तक ब्रीदिंग अंदर लें, 1 2, देन स्टॉप एंड 3 काउंट्स तक उसको रिलीज करें, 1 2 3। डू दिस 10 टाइम्स व्हेन यू फील स्ट्रेसफुल। स्ट्रेस आपका रिलीज हो जाएगा। सेकेंड इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं विद इन एन ईयर, 7-8 मंथ्स तक, उनको आपने देखा होगा जब वो सोते हैं तो उनके दोनों हाथ उनके बेली पे होते हैं। वो एक ऐसा स्टेट होता है, इतने छोटे बच्चे का कोई ईगो नहीं होता, किसी चीज़ से आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होता है, एंड वो दोनों हाथ को बेली में रखते हैं और ब्रीथ करते हैं। सो इन द सेम वे आप जब भी स्ट्रेसफुल फील करें अपने दोनों हाथों को अपने बेली पे रखें, क्योंकि वो एक बचपन का सबकॉन्शियस एसोसिएशन होता है रिलैक्सिंग का। अपने हाथों को बेली पे रखें, आंखें बंद करें और ब्रीथ करें। आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाएगा एंड आपको ये रिलैक्स भी कर देगा। थर्ड इज क्लेंजिंग ब्रेथ। इसको आप डेली बेसिस में क्यों बोल रही हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत बार होता है कि हमारे सामने लाइफ के वो इवेंट्स आते हैं जिसमें हम बहुत हर्ट हुए थे या जिसने हमें बहुत तकलीफ दी थी, पलट पलट के वो इवेंट सामने आता है, राइट? सबकी जिंदगी में होता है। तो जब ऐसे इवेंट्स आए, अपनी आंखें बंद करें, उस इवेंट को महसूस करें, पूरा अच्छे से महसूस करें, उसको रीलिव करें। फिर उस तस्वीर को, उस इमेज को अपने सामने रख दें और पूरी पॉजिटिव एनर्जी नाक से अंदर लें और पूरी वो नेगेटिविटी, अगर गुस्सा है, हर्ट है, व्हाटएवर इट इज, वो मुंह से रिलीज करें। और जैसे ही वो मुंह से रिलीज करें, इमेजिन करें कि जो सामने वो इमेज है, वो इंसिडेंट है, वो फेड अवे हो रहा है और बॉडी रिलैक्स हो रही है। कीप डूइंग दिस जब तक वो कंप्लीटली फेड अवे ना हो जाए। नेक्स्ट डे फिर करें। अगर नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि उस इंसिडेंट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कीप डूइंग इट फॉर 3-4 डेज अंटिल वो इंसिडेंट कंप्लीटली फेड अवे ना हो जाए। लास्ट, ओके, नॉट द लास्ट वन, सेल फोन। सेल फोन आजकल हम सब जो हैं वो यूज करते हैं। जो सेल फोन, उसमें बेसिकली सबके पास स्मार्टफोन है। टिंग 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 दिन भर नोटिफिकेशन बजते रहते हैं। ये रिसर्च की गई है कि जो उसमें नोटिफिकेशन एक एक बजता है, उससे बॉडी में सेम केमिकल, सेम केमिस्ट्री प्रोड्यूस होती है जो कि फाइट एंड फ्लाइट मोड में प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ के अगर चोर खड़ा हो जाएगा, उसके हाथ में चाकू है, तो मेरी जो बॉडी की केमिस्ट्री होगी वो केमिस्ट्री विल बी एग्जैक्टली सेम टू द केमिस्ट्री प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी जब वो नोटिफिकेशन फोन में आते हैं। तो इमेजिन दिन में कितने नोटिफिकेशन आते हैं, तो हमारी बॉडी का क्या हाल होता होगा। तो अपने इंटरनेट यूजेज का टाइम ऑप्टिमाइज करें। नोटिफिकेशंस बंद कर सकें तो प्लीज बंद करें उसको। सेकेंड, सोशल मीडिया एंड स्क्रीन टाइम को ऑप्टिमाइज करें। इट हैज़ बीन फाउंड कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो आजकल आता है वो एक सबकॉन्शियस कंपैरिजन से आता है। जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, सबके हैप्पियर वर्जन्स ऑफ लाइफ देखते हैं, और जब वो हैप्पियर वर्जन्स ऑफ लाइफ हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हम लाइफ में कहीं पीछे छूट रहे हैं, और उसको ओवरकम करने के चक्कर में हम अपने आप पे और प्रेशर और स्ट्रेस डालते हैं। तो
तो अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें, अपना सोशल मीडिया का टाइम रिड्यूस करें. एंड द लास्ट, be grateful for whatever you have in life, because physics, science has proven that whatever you focus on expands. जो भी जिंदगी में है उसके लिए ग्रेटफुल होंगे तो फोकस शिफ्ट हो जाता है अबंडेंस पे, लैक से, और फिर लाइफ में और अच्छी चीजें मल्टीप्लाई होने लगती हैं. तो लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है और अच्छा चल रहा है तो अपना फोकस कॉन्शियसली उस पर डालें जो अच्छा है, तो और अच्छा होगा. थैंक यू सो मच. The power to heal anything and everything is all within. Thank you, Trisha, for that insightful talk. Our next. Thank you so much. Thank you, Trisha ma'am. Trisha has delivered a very interesting and technical reasons of stress and also gave a very wonderful solution. Thank you so much, Trisha, for your wonderful session. Thank you. Thank you so much, ma'am, for giving this opportunity. Thanks a lot. This is a thank you note from my side. Okay, thank you. Our next expert speaker is a double doctorate. He has done PhD in management on employee behavior and PhD in commerce on Bhagavad Gita and management. He is also an astrologer, an assistant professor in the Department of Management at SOS Jivaji University, Gwalior. With all respect, I invite Dr. Ravindra Pathak to share his knowledge on the theme Indian mythology and stress management. Over to you, sir. Thank you, Ginny. मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपर? Yes, sir. ओके. तो अभी हम लोगों ने 2 स्पीकर सुने, राजीव सर को सुना, त्रिशा मैम को सुना, and they have explained stress management, day-to-day stress management nicely and beautiful manner. बात आती है कि स्ट्रेस आता कहाँ से है. तो I would like to share some spiritual aspect of stress basically. क्या है कि स्ट्रेस आज के, जैसे राजीव सर ने कहा कि एक फैशन बन गया है, तो वाकई में it is becoming fashion nowadays, or people are like to do treatment of this stress. अब वो क्या हो गया, YouTube पे बहुत सारी चीजें आ गई, इधर कुछ आ गया, तो इस कारण क्या हो रहा है कि चीजें हम जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस नजरिए से देख रहे हैं, वही नजरिया हमारा बनता जा रहा है. So it is a matter of only outlook, how we are perceiving the things, so that we should know. पहली बात, स्ट्रेस है क्या, अभी त्रिशा मैम ने बहुत अच्छे से बताया. I don't want to explain again the medical aspect of stress. मैं स्टोरी बताता हूँ, उस स्टोरी के माध्यम से आप समझे स्ट्रेस आता कहाँ से. बहुत छोटी स्टोरी है. पहली बात तो ये है कि स्ट्रेस हो रहा होगा कि अब कितना लंबा और चलेगा सेशन, तो बहुत ज्यादा नहीं, हम 10 मिनट में इसको बस बताते हैं आपको. छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके लिए यूजफुल होंगी. पहली बात, स्ट्रेस आता कहाँ से और कैसे. तो आप देखिए, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, गांव में रहते थे, खेला करते थे, पेड़ों पे चढ़ा करते थे, कूदा करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी. एक दिन खेलते खेलते वो अपने गांव से बाहर आ गए, और उसमें से जो दौड़ लगा रहे थे आगे पीछे, और दौड़ लगाते लगाते क्या हुआ, एक बच्चा गांव के बाहर एक कुआं बना हुआ था, उसमें गिर गया. अब गिर गया तो क्या हुआ, दूसरे वाले का प्रॉब्लम कि भाई क्या होगा. उसने जैसे तैसे जुगाड़ लगाया, क्या करे, आवाज लगाई, चिल्लाया, लेकिन कहीं कोई दिखने वाला नहीं, क्योंकि गांव के बाहर आ गए थे खेलते खेलते. जनरली होता है खेतों में कुएं बने होते हैं. तो अब उसने देखा कि मेरे आसपास भी कोई नहीं है और मैं अकेला पड़ गया. उधर उसका जो दोस्त था वो नीचे पानी में से चिल्ला रहा था कुएं से कि बचाओ बचाओ बचाओ. तो उसने देखा एक बाल्टी और रस्सी पड़ी हुई है, तो उसने आओ देखा ना ताओ उसको कुएं में पटक दिया. और जैसे भी था उससे कहा तू इसको पकड़, और ऊपर से एक छोर उसने पकड़ा और नीचे एक छोर दूसरे वाले दोस्त ने पकड़ा, और उसने ताकत लगाना चालू किया, जैसे तैसे खींचना चालू किया. आधा 1 घंटे की मशक के बाद कोई वो उधर आगे जाता, कभी वो उधर आ जाता, लेकिन एट द एंड वो जो नीचे दोस्त गिरा हुआ था वो बाहर आ गया. दोनों खुश गले वले लगे और जल्दी से एक दूसरे को सही किया, झाड़ा पहुंचा, और बोले डरते हुए घर जा रहे हैं. बोले यार अब घर जाएंगे और घर पे ये बात मालूम पड़ेगी तो आज तो पिटाई लगना तय है. ऐसा सोचते हुए दोनों जा रहे. बोले अपन किसी को नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे, जैसे तैसे. बोले ठीक है भाई. घर पहुंच गए, पूरा दिन निकल गया, रात निकल गई. अगले दिन उन्होंने
भाई उनके जो एक दादाजी थे उनके पास गए, उनको डरते डरते बताया कि बोले दादाजी कल क्या हुआ कि बोले ये पानी में गिर गया था कुएं में और मैंने इसको ऐसे रस्सी बाल्टी पटकी और फिर मैंने इसको निकाल लिया। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं की। अरे बोले अच्छा ठीक है हो गया, बोले जाओ। फिर उन्होंने कहा बोले अब क्या कर रहे हो? बोले दादाजी को तो कोई मतलब ही नहीं निकला। उन्हें ऐसे 2-4 लोगों को बताया, सबने कहा अरे नहीं। क्यों? उनको ये लगा, जब उन्होंने पूछा इसका कारण तो उन्हें सबने कहा कि इतना छोटा बच्चा बराबर के अपने साथी को कुएं से कैसे निकाल लेगा? तो किसी ने उन पे विश्वास नहीं किया। तो बेसिकली यहाँ बात कहाँ आती है कि अगर यही चीज उल्टी होती, ये गाँव के अंदर होते और यदि वो पानी से निकाल रहा होता, तो शायद वो नहीं निकाल पाता। क्यों? क्योंकि लोगों का माइंडसेट क्या था कि इनकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो बेसिकली हम स्ट्रेस में आते कब हैं कि व्हेनेवर वी आर अनेबल टू मैनेज द रियल और इमेजिनरी प्रॉब्लम, चाहे वो प्रॉब्लम इमेजिनरी है लेकिन वी आर अनेबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो जब भी आप देखें हैं तो हमको स्ट्रेस आता है अपने पीयर प्रेशर के कारण, अपने फैमिली प्रेशर के कारण, सोशल प्रेशर के कारण, और उस केस में क्या होता है हम अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेबिलिटीज को भूल जाते हैं। इसका दूसरा उदाहरण बहुत अच्छा मिलता है रामायण में। जब सारे बानर जामवंत जी के साथ में, अंगद के साथ में, हनुमान जी के साथ में सीता माता की खोज में जाते हैं तो देखते हैं उनको पता चल गया समुद्र के उस पार सीता जी हैं, ठीक है। और सीता जी को कंफर्म करने कौन जाए कि वहां दो उस पार लंका है और उसमें सीता जी हैं। तो उन्होंने सबको एक दूसरे को देखा, सबने कहा भाई मेरे कैपेबिलिटीज नहीं है, मेरा कैपेसिटी नहीं है, पावर नहीं है इतना। तो भाई क्या होता है, जामवंत जी ने याद दिलाया हनुमान जी को कि बोले भाई आप जा सकते हो। बोले मैं क्यों जा सकता हूँ? आज होता क्या है हमारे साथ भी यही होता है ना, बॉस हमारा बोलता है आप कर सकते हो। तो जामवंत जी बॉस थे, सीनियर थे, उन्होंने कहा हनुमान जी आप कर सकते हो। बोले क्यों आप कर सकते हो? बोले आप करो ना, आप बड़े हो, आप बॉस हो, आप करो। क्योंकि हनुमान जी टेंशन में आ गए, मैं ही क्यों करूं इतनी बड़ी टीम में? तो हम भी टेंशन में आ जाते हैं, हमारी टीम है, और बोले मैं ही क्यों करूं? तो बोले, उन्होंने कहा भाई आप इसलिए कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर पावर है। बोले वो आप तो मुझसे ज्यादा बड़े हो, बोले आप कर सकते हो। बोले जामवंत जी ने, बोले जब वामन अवतार में आए विष्णु भगवान, जो तीनों लोगों को ढक लिया, उनकी 7 परिक्रमाएं लगा ली, तुरंत उनको उन्होंने याद दिला दिया। तो बोले भाई आप, बोले हनुमान जी ऐसा है मैं कर तो सकता हूँ लेकिन तब मैं यंग था, अब मैं यंग नहीं हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज, मेरे जो फिजिकल कैपेबिलिटीज है वो साथ नहीं देंगी। तब उनको याद दिलाया कि राम दूत अतुलित बलधामा, मतलब आप अभी यंग भी हैं और आप कैपेबल भी हैं। तो बेसिकली हम 2 कारणों से हारते, मन के हारे जीते हैं, मन के हारे हार। तो वो वाली बात है। तो आपका मन कैसा है, इन 2 स्टोरी में मैंने ये बतलाया है, स्ट्रेस कुछ नहीं है, हम अपने मन में उसको कैसे लेते। यदि आपका मन उसको मानता है कि मैं कैपेबल नहीं हूं, उस काम को नहीं कर सकता, तब तो आप उसको कभी नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखिए स्ट्रेस जैसी कोई टर्म होती नहीं, बेसिकली इट इज न्यूट्रल टर्म। अगर सब लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा, इट इज न्यूट्रल टर्म, आइदर इट वुड बी यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। अगर पॉजिटिव है तो यू स्ट्रेस और नेगेटिव तो डिस्ट्रेस है। स्ट्रेस इज न्यूट्रल। तो हम उसको किस तरह से परसीव करते हैं, हम पॉजिटिव साइड ले जाना चाहते हैं या नेगेटिव साइड। दोनों स्टोरी जो मैंने आपको बताई उनमें इसका पूरा परफेक्ट एग्जाम्पल है। यदि आप उसको पॉजिटिव साइड ले जाएंगे तो आपको उसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम टाइम। रात भर में सारी स्टडी हो जाती है जो पूरे पिछले सेमेस्टर में नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है। अगर आप पूरे 6 महीने पढ़ते तो और अच्छा पढ़ लेते। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, ये स्टोरी हमको बतला रही है। और हमारे आसपास जो लोग हैं उन पे ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं। कई बार हम क्या करते हैं, उनकी बातों को बहुत ज्यादा वेटेज देने लगते हैं। अरे हम ये काम कर सकते हैं, नहीं तुम्हारे अंदर तो ये है, तो उन्होंने इतना पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अति हर चीज की बुरी, अति सर्वत्र वर्ज्यते, ये वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि बोले अति हर चीज की बुरी, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए भाई। अच्छाई भी ज्यादा, शुगर ज्यादा हो जाएगी तो वो भी बीमारी का कारण बनेगी। तो ऐसा नहीं, आप उसको मेंटेन कीजिए। और वो मेंटेन करने का तरीका क्या होगा? मेंटेन करने का तरीका ये है कि हम एक्चुअल में अपने आप को पहचानें। सबसे पहले यू शुड आइडेंटिफाई योरसेल्फ, हु यू आर एक्चुअली एंड व्हाट यू वांट टू डू। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम इससे इधर उधर हो जाते हैं तब हमको इसको बड़े अच्छे ढंग से, बोले क्या बतलाया है अभी, जैसे मैडम बात कर रही थी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की, भगवत गीता भी यही कहती है। हम चेतन अवचेतन की बात करते हैं। अभी जो मैडम ने बात कही सीड वाली, मैं उसको बताऊंगा, उसमें एक चीज थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। आज प्रॉब्लम क्या है, हम अच्छे विचारों की तो बात कर रहे हैं, विचार आएंगे कहां से? भाई प्रॉब्लम ये है कि वो बीज तो हम बो दें लेकिन बीज है ही नहीं, अच्छा बीज की क्वालिटी डिट्रॉइट हो रही है, वो कहां से आएंगे? इसमें जो मेरा मानना है, इसमें आता है हमारा संस्कार। सबसे पहले संस्कार आते हैं, संस्कारों से विचार बनते हैं, विचार से हमारा व्यवहार या आचरण बनता है, उससे हमारा चरित्र बनता है, मतलब कैरेक्टर बनता है, कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, और फिर हमारा व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी ओवरऑल बाहर आती है।
आज फैमिली में बात करने ही दिक्कत हो गया ना भाई। शुरू में जैसे मैम बोले थे इंट्रोडक्शन में कि भाई आज सबसे पहले दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है पहले घरों में बात हो रही है, हम एक दूसरे को बता रहे हैं, वो संस्कार ही खत्म हो गया। अभी जैसे मैडम ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थ्योरी और हिप्नोटिज्म की बात की, बहुत अच्छी मेथड है। ये हमारे बता रहा है कि हम, जो भगवत गीता कह रही है कि आत्मा हमारी अजर अमर है, मतलब वो कभी खत्म नहीं हो रही, केवल शरीर बदल रहा है। तो जो हमारे प्रारब्ध के जन्मों के चित्त पर प्रभाव पड़े हुए हैं, मतलब हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें हैं वो हमको अफेक्ट कर रही हैं, एंड दैट इज कॉल्ड संस्कार। वो इस जन्म के भी होंगे, पूर्व जन्म भी। तो आप अच्छे संस्कारों की जरूरत है। आप अच्छे से बात कीजिए, ये स्ट्रेस तो अपने आप हट जाएगा। स्ट्रेस होता ही नहीं है कुछ। आप खुद देखिए ना, यदि स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है नहीं बढ़ाता, आपके अंदर एनर्जाइज करता है आपको नहीं करता। एग्जाम टाइम का एग्जांपल लीजिए, सभी ने फील किया होगा, जितनी हम पिछले 10 दिनों में या एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम वाली रात में कर डालते। तो एनर्जी लेवल बढ़ाया ना उसने, तो हमको कभी कभी स्ट्रेस जरूरी है। अगर वो स्ट्रेस भी नहीं होगा तो बेकार है। लेकिन स्ट्रेस कैसा चाहिए, इसका रिजल्ट पॉजिटिव। बेसिकली कोई भी चीज खराब या अच्छी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका रिजल्ट क्या है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट। दैट आउटकम शुड बी पॉजिटिव, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप आउटकम की जब हम बात करते हैं तो हम सही और गलत की बात कर पाते हैं। तो अगर हम अपना प्रयत्न सही करें तो आउटकम भी अपने आप सही हो जाएगा। हम प्रयत्न ही गलत करते हैं, पहले हम गलत मान के चलते हैं। तो भगवत गीता में इसको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अगर आदमी समझे, 12वां अध्याय जिन लोगों ने पढ़ा इसको पढ़िएगा, उसके 12 नंबर श्लोक से जाके पढ़े तो बहुत अच्छी बात कही है भगवान ने। संतुष्ट सतम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मय अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त सामे प्रिया। मुझे कौन से भक्त प्रिय हैं? बोले वो भक्त प्रिय हैं जो निरंतर संतुष्ट रहता है, जिसने अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रखा है। अब आपके सेंसरी ऑर्गन्स कहाँ कंट्रोल नहीं है? प्रॉब्लम कहाँ है? मुझे 2 मिनट में दोस्त को बात करनी है, मुझे 2 मिनट में पढ़ाई के बीच में उठकर अपना व्हाट्सएप चेक करना है, मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखना है, मेरे खुद के अंदर कंट्रोलिंग नहीं है, तब फिर रिजल्ट तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। अब आपने दिन के पूरा दिन खराब कर दिया, शाम को जब बात आई तो देखा यार आज तो कुछ किया ही नहीं, और जब किया नहीं तो फिर कहने लगे स्ट्रेस हो गया, मुझे स्ट्रेस होता है। अरे स्ट्रेस हुआ नहीं, ये तो हमने क्रिएट किया है, ये हमने क्रिएट किया है। तो 90% केस में हम लोग खुद स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, और वो स्ट्रेस कैसा होता है ये हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि हमारे देखिए एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास है उसको तो हम बदल नहीं सकते। मेरे इस पूरे वक्तव्य का, मेरी बातचीत का मतलब समझे, उन लोगों को हम नहीं बदल सकते, फैमिली को हम बदल नहीं सकते, ठीक है। हमारे आसपास जो लोग हैं उनमें से हम बहुत जल्दी इतने लोगों को नहीं बदल सकते, क्योंकि सही कई सारे लोग हैं जो नेगेटिव थॉट भी स्प्रेड कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव भी कर रहे हैं। आपको कुछ सबकी जरूरत है, तो हम बदले किसको? सबसे पहले स्वयं को। आचार्य श्री राम सरवानी ने बहुत अच्छी कहा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आप अपने अंदर पॉजिटिविटी भरिए ना, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए कि आपसे जो साथ में जुड़ा हो उसको लगने लगे कि हाँ आप पॉजिटिव। तो स्ट्रेस कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या कोई टैबलेट आ जाए जिसको हम ले लें। ये केवल हमारे विचारों की एक श्रृंखला है। इट इज अ सीरीज ऑफ थॉट। और वो थॉट कहां से आ रहे हैं? हमारे चित्त पर, जो मतलब मन पर पड़ रहे हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल अभी त्रिशा मैम ने दिया, उस 6 साल में बच्चे को जो एक्सपीरियंस हुआ उसके चित्त में आगे कहीं अटक गया, और ये हमारे यहाँ दिया हुआ है सब कुछ। तो इन सबको अगर हम करते हैं तो मैं इसकी रेमेडी पे बताता हूँ। बहुत अच्छा जो रेमेडी है वो है अष्टांग योग। अष्टांग योग क्या होता है? महर्षि पतंजलि ने बहुत अच्छी बताई। आजकल सब लोग बाबा रामदेव को सुनते हैं, तो अष्टांग योग में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं जिनको हमें जानना चाहिए। सबसे पहला है यम। यम मीन्स व्हाट? ये है हमारा एक्सटर्नल डिसिप्लिन, मीन्स एथिकल डिसिप्लिन। हम एथिकल डिसिप्लिन की बात करते हैं, मतलब हमें गलत नहीं करना। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें ना, ये हमारे एथिकल इश्यूज हैं। जैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हम नहीं करते, तो ये हमारा यम। यम आता है नियम। नियम है इंटरनल डिसिप्लिन। एक हमने अपने एक्सटर्नल मतलब एथिकल एस्पेक्ट को सुधारा, दूसरा अपने इंटरनल। इंटरनल को क्या है? जैसे मुझे सच बोलना है, मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टाइम पर खाना खाना है। तो टाइम पर खाना खाएंगे तो बहुत सारी चीजें, टाइम पर सोकर जगेंगे तो बहुत सारी चीजें निपट जाएंगी, तो स्ट्रेस होगा ही नहीं। वो छोटा सा एग्जांपल है, टाइम पर आप जागते नहीं है, कॉलेज पहुंचने के लिए लेट हो जाते हैं तो आपको स्ट्रेस। अरे वो स्ट्रेस था थोड़े, वो तो हमने पैदा किया। तो आप यम और नियम, यम माने एक्सटर्नल और नियम माने इंटरनल, दोनों को आप अलाइन कीजिए, दोनों को बैलेंस कीजिए। फिर हम बात करते हैं आसन, बैठने का तरीका। जो अभी जैसे कि अग्रवाल साहब ने होता है कि कंधे चौड़े कर लीजिए। अरे क्या पोस्चर, बॉडी पोस्चर हमारा सही कर लीजिए ना। हमारे यहाँ पहले से ही कह रहे हैं। अब फर्क ये हो गया कि जब वेस्ट से कोई बात आती है तो हम उसे बहुत बड़ा मिरेकल मानते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, स्क्रिप्चर में लिखा है, उसको हम नहीं मानना।
वही बचपन से माँ बाप सिखाते हैं सीधे बैठो, अरे हमारा स्पाइनल कॉर्ड सीधा होगा, मेरुदंड सीधा होगा तो आधी प्रॉब्लम एनर्जी का फ्लो सही हो जाएगा। एनर्जी का फ्लो ही गड़बड़ हो रहा है, हम सीधे बैठते हैं, मैक्सिमम लोग झुक कर बैठते हैं। तो आसन और जो कहना चाहिए बैठने के तरीके हैं, इनसे हम बहुत कुछ अपने आप को, एनर्जी को, फ्लो को सुधारते हैं। आफ्टर दैट प्राणायाम, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। प्राण मीन्स वायु, वायु मतलब जो आप सांस ले रहे हैं, आयाम माने उसका जो ठहराव, आना जाना, तो उसको आप एक रिदम में लीजिए। भाई हमारी जो कैपेसिटी है उसका हम 20% 25% से ज्यादा तो इनहेल ही नहीं करते। आप पूरा सांस भरिए ना, फिर देखिए खुद अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आएगा, आपके ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, आप एनर्जाइज फील करेंगे। व्यक्ति बहुत छोटी छोटी सांस ले रहा है, आप खुद फील करके देखिए। तो इन चीजों को जब अपने व्यवहार में लाएंगे, अपने आप आपको चेंज देखेगा। भाई आप खुद सोचिए कि हमारे यहाँ जो पहले लोग थे वो इतने स्ट्रेसफुल क्यों नहीं थे? काम तब नहीं थे क्या? तब संघर्ष नहीं था? आप याद रखें 1991 फुल लिबरलाइजेशन, इतनी सुविधाएं नहीं थी इंडिया में जितनी आज हैं, और करंट जनरेशन को बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल रही है। उसके पीछे कारण क्या है? वो सुविधा के कारण अपनी लाइफ को बिगाड़ रहे हैं, और वो फिर स्ट्रेस आ रहा है। तो कंपनी तो चाहिए रही है आप बिगाड़िए भाई, जिससे उनकी दुकानदारी चलेगी। आज फार्मा सेक्टर की हम बात करें, आप सब लगभग कॉमर्स या मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, फार्मा सेक्टर की ग्रोथ देखिए सिंस 1991। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि हम कर क्या रहे हैं? हम अपने हाथ से अपनी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है? प्रत्याहार। प्रत्याहार मींस विड्रॉल ऑफ सेंसेस। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन से भाग रहे हैं। देखो भाई ये शरीर जो है ना, जैसे रथ होता है ना, रथ आपने देखा होगा भगवान के रथ, विष्णु जैसे आपका सूर्यदेव का रथ, तो रथ के घोड़े हैं, तो ये घोड़े हैं हमारे जो सेंसरी ऑर्गन, 5 सेंसरी ऑर्गन, आपके आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब भागते हैं। इनको आप कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल कौन करेगा? आपके जो मन रूपी, जो आपकी रील से उसकी जो लगाम है, उसको पकड़ेगी कौन? बुद्धि रूपी सारथी। तो आप बुद्धि विवेक से उसको कंट्रोल करते हैं, और आत्मा उसका कौन है? ऑनर है। तो बेसिकली शरीर का जरूरत है वो आत्मा ही तो है। आत्मा निकल गया तो सब कुछ बेकार है। हमारे स्क्रिप्चर में ऐसे का है, और हम उसको दूसरी तरीके से कहें, जब हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं तो आपके शरीर को, हालांकि शरीर से ऊपर आत्मा है। इनिशियली समझ में नहीं आती ये चीजें, लेकिन अगर हम जब समझेंगे धीरे धीरे तो आप अपने शरीर को सुदृढ़ बनाएंगे। बेसिकली ह्यूमन बॉडी एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू द सोल। अगर हम ये इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होगा, सोल काम कहां से करेगी? और सोल नहीं है तो बॉडी का कोई काम नहीं है। तो इसलिए हमको उसका अलाइनमेंट आना चाहिए। फिर हम धारणा, ध्यान, समाधि की बात करते हैं, वहां तक जाना ही नहीं है, आप केवल यहाँ तक आ जाइए। अगर आपने अष्टांग योग को समझ लिया तो आप अपनी लाइफ को, जितनी थ्योरी चल रही है, वेस्टर्न थ्योरीज, सब उस पर बेस्ड है। आप उसको बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में, अब उसको अगर मैं दूसरी तरीके से कहूँ तो आप देखिए, जब से ये लास्ट डिकेड ऑफ आपका ये 20th सेंचुरी, जब 90 से और 2000 के बीच में हम चले, तो हमारे यहाँ काफी चीजें बदलाव हुए। क्यों हुए? क्योंकि लिबरलाइजेशन 1991 में, जुलाई 1991 में आया, तो उसके बाद बहुत सारी कंपनीज आई। उनमें एक दिन आई आपका सेल फोन, मोबाइल। आप देखिए कि आज सबसे बड़ा जो कारण है टेंशन का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, वो है मोबाइल। अगर आप इसको मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली भी ले जाता हूँ, उससे लिंक करता हूँ, उसका कारण कौन है? राहु, जिसे हम जेब में लेके घूम रहे हैं। जितने भी रेडिएशन हैं वो राहु से गवर्न होते हैं। यदि आप एस्ट्रोनॉमी पढ़े हैं तो उसको आपको पता चलेगा। तो वो राहु से गवर्न होते हैं, और वो हम जेब में लेके घूम रहे हैं। और आप देखिए घरों में भी तो रेडिएशन बढ़ ही रहा है हमारा, और वो रेडिएशन बढ़ने से हो क्या रहा है? आज हम सबसे ज्यादा हमारे दिमाग पर असर पड़ता है उस रेडिएशन का। तो ये चीज कहीं ना कहीं आ रही है ना, हम उसे जेब में लेके घूम रहे हैं। तो हमने राहु को अपने जेब में रख लिया, और राहु का जो एस्ट्रोलॉजी में टेंडेंसी है, नेचर है, वो है मति भ्रम, इल्यूजन। तो मति भ्रम तो कर ही रहा है ना, सबके मति भ्रम हो रहे हैं। तो आप उसको कंट्रोल करिए, अपने से दूर रखिए, थोड़ा जितना जरूरत है उतना पकड़िए। समझ में आ रही है ना बात? हर कोई भगवान शंकर नहीं है जो गले में सांप डाल के घूम सकता है। तो आप ऐसे शंकर मत बनिए, उसको थोड़ा समझिए। ये सब चीजें हमारे सिंबॉलिक हैं, समझने के लिए हैं। भाई आप भगवान शंकर तो है नहीं जो अलाहाल अपने गले में धारण कर लेंगे। तो ये आज वायरस जो आप देख रहे हैं, उसका क्या रीजन है? यही सब कारण है। इसी तरीके से जब हम देखते हैं, दूसरा कारण आप देखिए, जैसे मैडम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था अभी, त्रिशा मैम ने, उसी चीज को मैं अपने स्क्रिप्चर से बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग समझिए, हमारे स्क्रिप्चर में सब कुछ दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंडीशन में हो, 3 दिन से ज्यादा एक सेम कंडीशन में नहीं रह सकता। आइदर ही इज हैप्पी और ही इज नॉट हैप्पी। चाहे उसे दुख हो चाहे खुशी हो, 3 दिन से ज्यादा नहीं रह सकती, तीसरे दिन उसमें चेंज आ जाएगा। क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मून। मैडम ने अभी धरती माता का एग्जाम्पल दिया ना,
तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि सबसे क्लोज सैटेलाइट जो है, नेचुरल सैटेलाइट, वो कौन है? मून है, पृथ्वी के। और पृथ्वी का वो जब सर्किल आता है, उसका चक्कर लगाता है, तो वो जब रोटेशन आता है तो आप देखते हैं जब पूर्णिमा के आसपास हाई टाइड बनते हैं समुद्र में। क्यों बनते हैं समुद्र में? क्योंकि बिकॉज ऑफ वाटर। और वो वाटर एलिमेंट हमारे यहाँ भी है। हम कहते हैं पृथ्वी पे 2/3 वाटर है, लगभग 70%। ह्यूमन बॉडी में भी वही है। तो जब समुद्र में लहरें आ जाती है, वहां उमंगे ऊपर नीचे हो जाती है, हमारे शरीर में क्यों नहीं होंगी? और वो एक राशि में केवल 2.25 दिन रहता है, तीसरे दिन आपका चेंज आ जाएगा। जिनको भी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कैसे भी करके 2 दिन किसी भी प्रैक्टिस को कर लीजिए, तीसरे दिन उनको अपने अंदर परिवर्तन दिखेगा। वो होना ही है, ये सीधी स्थिति है। स्ट्रेस कुछ नहीं है। जैसे आप समुद्र में खड़े हैं तो लहरें आपको हिलाएंगी, तो ये जीवन रूपी लहरों में समुद्र में हम जो उसको भवसागर कहते हैं, भवसागर का मतलब ही है भव अर्थात होना। तो हम कुछ बनने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ होना चाहते हैं, और जब होना चाहते हैं तो वो लहरें तो हमें हिलाएंगी ना, वो हिलोरे आएंगे ना, तो उसको घबराना क्यों? हम उसको पॉजिटिवली लेना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए। जितना स्ट्रॉन्ग होकर आप समुद्र में खड़े होते हैं, जितने कैपेसिटी तक आप लहरों को बियर कर सकते हैं, आप खड़े रहते हैं। और जैसे ही गए तो फिर आपको वो ताकत हो जाएगी, तो वो गिरा लेंगे। आप ताकतवर है तो आप रोक लेंगे। तो अपने शरीर को समर्थ बनाइए, अपने आप को समर्थ बनाइए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि इसमें आप किस तरह से अपने ब्रेन, अपने मतलब माइंड को, अपने बॉडी को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ये जानने की बात। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ है? दिक्कत हम अपने आसपास की चीजों को नहीं जानते, हमने बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्या हो रहा है ना, वही चीजें नई पैकिंग में मिल रही हैं, तुमको बहुत अच्छी लग रही है। तो पैकिंग ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पहले ये समझो हमारे पास क्या है। हम उस संस्कृति में पैदा हुए हैं, उस राष्ट्र में पैदा हुए हैं जो अपने आप में सुदृढ़ है। हम भारत को विश्वगुरु कहते थे और विश्वगुरु बनाना चाह रहे हैं। तो हम ऑलरेडी विश्वगुरु है, ना बनाने की जरूरत है, ना कहने की जरूरत है। हमें अपने आप को परिवर्तन करने की जरूरत है। और आज हमने अपने आप को वीक बना लिया है। तो दूसरी कंपनीज के कारण जो भी कुछ चल रहा है, आजकल मार्केटिंग का जमाना है, तो उनको मत सोचिए, पहले आप अपने आप को देखिए। इसलिए मैंने संस्कारों की बात की। हमारे घरों में पहले संस्कार दिए जाते थे, इसके कारण ये सारी चीजें दिखती नहीं। अचानक ही पिछले 20 सालों में क्या हुआ कि सब इतने कमजोर हो गए। तो वो कमजोरी की बात नहीं, समझने की बात है। यदि आप इसको करना चाहते हैं कंट्रोल, तो बहुत छोटे छोटे टिप्स है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ, आप देखें। सबसे पहले जो बात करते हैं, सबसे पहले रियलाइज योर स्ट्रेंथ, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले आप उसको महसूस कीजिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने अदम्य क्षमता, साहस दिया है, तो आपके अंदर वो क्या है, आप उसको पहचानें। दूसरा, बी ऑनेस्ट एंड फेथफुल। चाहे वो आपका घर है, चाहे परिवार है, चाहे समाज है या राष्ट्र है, या आप स्वयं है, कुछ नहीं तो सबसे पहले अपने लिए ऑनेस्ट और फेथफुल बनिए। कि आपको विश्वास होना चाहिए, यस ये मैं कर सकता हूं, ये मेरे पास है। और ऑनेस्ट बनिए, यस ये नहीं है, इसको मैं इंप्रूव करूंगा। दिक्कत तो यही है कि हम ऑनेस्ट नहीं होते। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाई योर पर्पस ऑफ योर लाइफ। व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ? ये आपको पता ही नहीं होता। हम चले आ रहे हैं अंधी दौड़ में, तो कभी हम किसी को देखते हैं, कभी किसी को देखते हैं, तो परेशान होते हैं। एक सबसे अच्छी चीज जो शुरू से हमारे घरों में सिखाई, वो है प्रेयर, प्रार्थना। 2 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट भगवान को दीजिए। मंदिर जाते तो अच्छी बात है, नहीं जाते जहां खड़े हैं, जिस किसी भी धर्म संप्रदाय के हैं, सब में प्रार्थना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब प्रार्थना करते हैं। ईश्वर की हम प्रति हैं, तो हम जिस किसी भी धर्म संप्रदाय से हैं, जिसको मानते हैं, उस ईश्वर को 2 मिनट 2 सेकंड दीजिए और प्रार्थना कीजिए। तो वो आपको कनेक्शन ऑफ एनर्जी, जो आपका जो होगा ना, जो हम बोल रहे हैं कॉस्मिक एनर्जी, उससे आपका कनेक्शन बनेगा। हमें भी एनर्जी चाहिए। वो आत्मा क्या है? वो एनर्जी है। तो जब हम, कुछ लोग इसलिए पहले क्या होता था, मंदिर जाते थे, तो मंदिर जाने के पीछे, ये मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च जाने के पीछे एक ही कारण था कि वो वहां से पॉजिटिव एनर्जी गेन करके लाए। वो अब हमने छोड़ दी है। नेक्स्ट है हमारा मेडिटेशन। हालांकि मेडिटेशन को बाद में देता हूं, ध्यान से समझ लें। ध्यान हमें कहीं लगाना नहीं है, लेकिन ध्यान भटकाना नहीं है। हमें तटस्थ होना है। जैसे हम मूवी देखते हैं ना, हम मूवी का पार्ट नहीं होते, लेकिन चलते चलते मूवी का पार्ट बन जाते हैं, फील करने लगते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो हमें फील नहीं करना है, हमें केवल देखना है, दृष्टा भाव रखना है। तो जो मेरे आसपास हो रहा है, उसको 1-2 मिनट के लिए दृष्टा भाव से देखिए कि ये चल रहा है वाकई में सही है, गलत है, और मेरा रोल उसमें सही है या गलत। और कुछ नहीं करते, तो रात को जब बिस्तर पे लेटते हैं, तो सबसे पहले बस दिन भर को पिक्चर अपने सीरियल की तरह देखिए कि आपने आज जो काम किए उसमें कितने क्वालिटी काम थे, या जो टाइम आपने बिताया उसमें क्वालिटी वर्क क्या थे। आपको स्ट्रेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट है आपका योगा, गुड फूड और एक्सरसाइज। जो आपको अच्छा लगता है, फूड का बहुत बड़ा रोल है। खाने से काफी कुछ चीजें अच्छी और बुरी दोनों तरह की।
क्योंकि जो फूड है पूरा पृथ्वी तत्व से आ रहा है, वो पृथ्वी 5 तत्वों का शरीर है, अग्नि पृथ्वी वायु जल। तो हमारा एलिमेंट जो बिगड़ता है, इससे वात पित्त कफ बनते हैं। तो ये 3 अगर ये त्रिदोष आ जाते हैं वात पित्त कफ के, तो आपका पूरा बॉडी का बैलेंस बिगड़ने लगता है। बॉडी को बैलेंस करना है। तो आज वो कह रहा है जंक फूड सबसे ज्यादा चल रहा है, खाइए, मैं ये नहीं कह रहा मत खाइए भैया, आज की जनरेशन है वो भी चलेगा, लेकिन कितना, क्योंकि प्रकृति ने हर जगह के हिसाब से, स्थान विशेष के हिसाब से फूड दिया हुआ है। तो ऐसा मत सोचिए कि जो इटली वाला जो हमारा कहना चाहिए, जो हमारा पिज्जा है वो इंडिया में चल के बिल्कुल वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो उसमें अंतर आएगा, हमें लेना है लेकिन कितना, अपने फूड को नहीं छोड़ना है, दोनों बातों को मैनेज करना है, जिससे आपकी हेल्थ पर असर ना पड़े। और सबसे बड़ी बात है हॉबी, कोई ना कोई एक हॉबी अपनी जरूर रखिए, कि आप चाहे जो भी गेम खेलते हैं, कुछ भी बात करते हैं, और कनेक्शन किसके साथ में, अच्छे लोगों के साथ, मित्र हो सकते हैं, फैमिली मेंबर, किसी भी एक अच्छे व्यक्ति जिससे आपको विश्वास, उससे बात कीजिए। जैसे मैंने अभी कहा ना, रामायण में भी एग्जाम्पल। फिर है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, कुछ एक चीज पढ़ने की आदत, भले एक पेज पढ़ें जरूर, पढ़ने से विचार आता है, ठीक है। और लास्ट और नॉट लीस्ट, कुछ चीजों को छोड़ दीजिए जो हमारे हाथ में नहीं है, चिंता ही मत कीजिए, जो मेरे हाथ में नहीं है उसको पकड़ के मैं चिंता करूं क्या। अब हम कह रहे हैं साहब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, होने दीजिए ना जो मेरे हाथ में नहीं है। इफ आई एम नॉट द डिसीजन मेकर, आई कांट टेक द डिसीजन, आई कांट कंट्रोल द सिचुएशन, लीव इट, गिव अप। छोड़ना भी अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण तो रणछोड़दास कहलाए ना, छोड़ दिया उन्होंने, 17 बार जरासंध को जीता, 18वीं बार छोड़ दिया ना। तो उसके पीछे पर्पस होता है, आप ईश्वर नहीं है, सब कुछ आप नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए। और जिस दिन आपने ये छोड़ना सीख लिया, अनवांटेड चीजें आपने छोड़ी, आप रिलैक्स हो गए। हम क्या करते हैं, सिर पर बर्डन रखकर चलते हैं। तो छोटी छोटी प्रैक्टिस है, इनको अपने लाइफ में अपनाइए। उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ अच्छा लगेगा, पॉजिटिविटी आएगी, सीखने को मिलेगा। दुनिया में 2 ही तरह के नजरिए हैं, एक हमारा पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। आप कैसा देखना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो विद दिस वर्ड आई टेक अ पॉज एंड थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। Turn your stress to eustress, that is positive stress, and see the good around and see how your life changes. Thank you, sir, for that sharing your wisdom. It was indeed a great learning for all of us. Before I move on to the next segment, there's a small announcement. The feedback link has been shared in the chat box. I request all participants to fill that feedback form, as the e-certificate would be generated only to those who fill the form, feedback form. And with this, we come to the end of the session of our one-day national webinar. I request Dr. Deepti Maheshwari, Dean, Faculty of Commerce, to give the vote of thanks. Sir, once again, on the behalf of Faculty of Commerce and Management, Rabindranath Tagore University Association with VSSS and Anand Vihar College और इसके साथ में बिजनौर College, I am heartily thankful to Ravindra Pathak sir for your spiritual aspect to regarding the stress, क्योंकि this is the main point nowadays कि हम अपनी spirituality को छोड़ते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम स्ट्रेस की ओर ज्यादा जाते जा रहे हैं। बिल्कुल आपने और त्रिशा मैम ने बिल्कुल ये बात सही कही कि सबसे बड़ा रीजन मोबाइल फोन है, जिसकी वजह से सर ने जैसे बोला कि वो राहु की तरह है, त्रिशा मैम बोल रहे हैं कि मोबाइल फोन पर जो नोटिफिकेशन आते हैं उसकी वजह से, दिस इज द मेन रीजन जो आज की यंग जनरेशन स्पेशली उस स्ट्रेस से गुजर रही है कि फेसबुक पर मैंने कुछ डाला तो कितने लाइक्स आए, इसमें ही स्ट्रेस हो जाता है। अगर नहीं आए तो उसके रीजंस क्या है, हम उसे फाइंड आउट करने में लग जाते हैं। ये बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से स्ट्रेस का लेवल लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और नेचुरल स्ट्रेस अपने आप में कोई वर्ड ऐसा नहीं है कि जो नेगेटिव है आपका। अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचते हो तो वो डिप्रेशन की ओर ले जाता है कहीं ना कहीं, और इस वजह से वो नेगेटिव बन जाता है। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लोगे, क्वेश्चन ये कि फोन अवॉइड कैसे करें, और इसी के साथ में अगर आप उस स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में लेते हैं तो वो आपको नई एनर्जी देता है, आपको कहीं ना कहीं नया कुछ करने के लिए पॉजिटिव वेव्स भी देता है कि हो सकता है कि मैंने वो चीज वहां छोड़ दी तो डेफिनेटली मैं कुछ नया कर सकता हूँ। सर आपके लिए एक क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है, तो पाठक सर से मैं पूछना चाहूंगी, उसके बाद मैं त्रिशा मैम से भी ये क्वेश्चन जरूर पूछूंगी
कि कैसे हम मोबाइल फोन पर जो लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं या लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, उससे कैसे अवॉइड करें। हाँ, बहुत जरूरी हो गया आज के टाइम में इस चीज को जानना। देखिए, और वेस्ट में हम देखें तो लोग आजकल जा रहे हैं और वहाँ रिसोर्ट बना दिए गए हैं कि भाई 2 दिन के लिए मोबाइल फ्री रहेंगे। वो एक तरह से मतलब टेक्नोलॉजिकल कहना चाहिए, फास्ट को रख रहे हैं, जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं। बड़ा इजी तरीका है। आइडेंटिफाई योरसेल्फ, योर नीड। आपकी जरूरत क्या है, कितनी जरूरत है। अब मुझे कॉलेज जाना है तो मुझे जरूरत नहीं है ना उस टाइम पर, जब नहीं थे फोन तो क्या हम स्कूल जाते थे तब करते ही नहीं थे क्या फोन। तो आप उसको अपनी आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी नीड को, एक्चुअल नीड क्या है आपको, या एक डिसिप्लिन बनाइए कि मुझे 1 घंटे में 10 मिनट देखना है। तो जितनी आपकी नीड है उसके हिसाब से, भाई अगर कॉर्पोरेट कोई है, कंपनी में कोई काम कर रहा है, कोई अपने ऑफिस में काम कर रहा है, उसकी समझ में आता है। एक स्टूडेंट है तो दोनों की नीड सेम नहीं हो सकती। यू शुड आइडेंटिफाई योर नीड और बैलेंस कीजिए उसको विद योर डिसिप्लिन। जो भी मैंने कहा ना, यम नियम, तो अपना जो नियम है खुद का नियम बनाइए कि भाई अगर मेरी पढ़ाई का टाइम है 2 घंटे, तो चाहे कुछ भी आ जाए मैं देखना ही नहीं है मुझे। जैसे त्रिशा मैम ने कहा नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन म्यूट कर दीजिए। अरे भाई दुनिया, देखो एक बात बताइए, जिससे काम होगा और आपके बिना दुनिया बदल रही होगी और ऐसा होगा कि आपके बिना काम नहीं चल रहा होगा, वो आपके घर तक आ जाएगा। और नहीं तो ऐसे बहुत लोग हैं कि जो हर 2 मिनट में क्या कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो वालों से बचना है। बस सिंपल तरीका है, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करना है। त्रिशा मैम, आप कोई मेडिकल मेथड कुछ बताएंगे ऐसा कि बच्चे उसे ओवरकम कर पाए? मैम मुझे इसमें 2 पॉइंट्स सामने अभी नजर आते हैं। फर्स्ट इज, जैसे हम सोशल मीडिया पे एक फोटो डाला हमने जी, आपने जैसा मेंशन किया कि हम बार बार लाइक्स चेक करते हैं। एग्जैक्टली। हम वो क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना वैलिडेशन देखते हैं उसमें, हमारी एक्सेप्टेंस क्या है सोसाइटी में, हमारी फोटो को कौन कितना वैलिडेट कर रहा है, काम को वैलिडेट कितना कर रहे हैं, वो हम अपने लाइक से उसको इक्वल करते हैं, राइट। तो फर्स्ट चीज जो मुझे लगती है वो ये है, वेदर इट बी एनीथिंग, थ्रू थेरेपीज, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योग, थ्रू स्पोर्ट्स, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, अपना सेल्फ वैलिडेशन होना चाहिए। हमें बाहर, वन शुड नॉट सीक वैलिडेशन आउटसाइड। जब यहाँ सब सही होगा तो बाहर से अपने आप मिल जाएगा। सेकेंड, मुझे ये लगता है कि लाइक आई पर्सनली, मैं मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट से मैं उसको लॉग आउट करके रख देती हूँ। सबकॉन्शियसली अगर उस आइकन पे जाता भी है हाथ तो दिखता है हाँ लॉग आउट है, फिर इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन कि उसको फिर लॉग इन करके देखना है कि नहीं देखना है। फिक्स अ टाइम, 12 इन द मॉर्निंग, 7 इन द इवनिंग, 2 बार हम नोटिफिकेशन चेक करेंगे, दैट्स इट। अब वो सेल्फ डिसिप्लिन, जैसा सर ने बोला, नियम, वो खुद ही लाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आई थिंक सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन बच्चों को ये जवाब जरूर मिला होगा और आई होप सो कि बच्चे इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे और साथ साथ मेन फोकस अपनी स्टडी पर और अपने करियर पर करेंगे, तो नेचुरली आपका स्ट्रेस कम भी होगा और पढ़ाई की तरफ रुझान भी ज्यादा जाएगा। इसी के साथ एंड ऑफ द सेशन कुछ लाइंस के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जो उड़ते हैं अहम के आसमानों पर, जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता, जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त के बदलने में वक्त नहीं लगता। थैंक यू सो मच। थैंक यू।